मैं अभिषेक बनर्जी और पीफ के चेयरमैन और डायरेक्टर डॉक्टर जब्बार पटेल सर से विनती करता हूँ कि वे व्यासपीठ पर आए, रंगमंच पर आए। अभिषेक और पटेल सर, एक बार दोनों के लिए प्लीज तालियों की रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू आप सभी का कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, और ये जो स्पेशल एवी जिन्होंने भी बनाया है, थैंक यू टू देम आल्सो। आई थिंक काफ़ी बहुत ही अच्छा एडिट किया है। जब्बार सर, थैंक यू, एंड एवरीबडी हु इज़ एसोसिएटेड विद पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। फेस्टिवल्स का मतलब ये होता है कि हम लोग अलग अलग शहरों में कल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा दें, और अगर वो फिल्म का कल्चर हमारे देश के हर एरिया तक पहुंच पाए तो आई थिंक हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जब बॉम्बे में बैठ के ढूंढ रहे होते हैं नए कलाकार, तो वो नए कलाकार सिर्फ बॉम्बे से नहीं आ रहे होते, देश के हर हिस्से से आ रहे होते हैं। सो आई थिंक it's a great space for me to also spend time and learn from you guys also, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए यंग कलाकार भी हैं जो अलग अलग एक्टिंग मेथड्स और स्किल्स पे काम कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से भी थोड़ा सीख लूँगा आज, ताकि थोड़ा सा मैं जाके अपने शहर में ब्रश अप कर पाऊँ। आज का ये एवी जो बनाया है वो रविकांत सोईतकर हमारे टीम के मेंबर है। थैंक यू रविकांत, रियली वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं जब्बार सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अभिषेक का एक फॉर्मल थोड़ा सा पीफ नागपुर के एडिशन की तरफ से स्वागत करें। ओके Thank you for coming. The mentor of PIF Nagpur edition. And catalog. थैंक यू जब्बार सर। और अब मैं आपसे विदा दिलाता हूँ मनोज। आगे का पूरा सेशन मास्टर क्लास विद अभिषेक बैनर्जी कंडक्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। स्वानंद। Good afternoon, Abhishek. Welcome to the Nagpur edition of 22nd Pune International Film Festival. We are extremely thrilled to have you here. Every other boy from small towns and cities wants to become a big star, a hyper-validation to their mundane everyday identities. Do big things on big screens, fight like a Bachchan or be a romantic like a Shah Rukh. And how do they do that? Through acting. And what is a gateway to become an actor? The unvariable but common answer is through theatre, or as now popular medium of reels. But to enter into cinema, getting casted for a role and hence get the exposure to your skills seems the only way. The way in which Abhishek, you have had a tough fight in, and in your words, to become a casting director was the lowest point in your life as an actor, which we would come to later in the conversation. After doing theatre in his college years, Abhishek Banerjee had worked for 7 years as a casting assistant in films like Dirty Picture and Once Upon a Time in I was the Bombay. casting director there. You were? Okay. I've only worked in one film as an assistant. उसके बाद मैंने सारे खुद कास्ट किए थे. खुद cast I was किए थे, lucky like that. But not in casting way? Casting. But casting bay I opened like after 7-8 years of being a casting director. Okay. तो मतलब अलग खैर बात करूँगा मैं. हाँ, ठीक. Okay, coming with the philosophy of you should always keep working around the industry you want to work in. He has done tireless efforts as a casting assistant and a casting director to get noticed as an actor. But the tyag as an actor you did to open casting bay certainly proved to be an opening for the film industry with the kind of choices of films you have made. You began, I'm not sure if began, but you did Ajji with independent filmmaker Devashish Makhija in his Dark World. Played a role of child abuser. But certainly, after your roles in Stree, Mirzapur, and famously as Hathoda Tyagi in Patal Lok, you had the recognition and platform that every other actor wants. And recently, also working with Mr. Amitabh Bachchan, whom you had always looked up to, Abhishek, has life come a full circle? Well, I have taken too much time now, and I leave it to you to get the conversation ahead. Whether life has taken full circle or not, I don't know. I mean, but of course, meeting Mr. Bachchan was definitely one of the few moments in my life which I'll cherish
मैं पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूँगा, क्योंकि आई एम श्योर आप में से भी बहुतों के ऐसे फेवरेट कलाकार होंगे, मतलब फेवरेट स्टार्स होंगे. कैन वी लूज दिस लाइट अ लिटिल, दिस वन? तो जब हम ऐसे बैठ के सोचते हैं घर में, मतलब आई डोंट नो, आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे कि यार एक दिन होगा जब मैं फलाना एक्टर के साथ रहूँगा और उनके साथ डायलॉग डिलीवरी करूँगा या उनके साथ सीन करूँगा. पर वो हमेशा ना बहुत ही दूर का सपना लगता है. वो एक्चुअली बहुत पास का सपना लगता नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप कैसे पहुँचोगे, कहाँ से जाओगे और क्या करोगे कि मतलब आपको इतने बड़े कलाकार, जैसे कि अगर मैं मेरे 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 केस में तो ऑब्वियसली मैंने सबसे ज़्यादा महानायक को चुना, मिस्टर बच्चन. आई थिंक मॉडर्न एरा के सबसे बड़े स्टार हैं वो. और तो ये बस सोच रखना या सपना देखना, वही मतलब बहुत बड़ी बात थी. लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन मैंने उनके साथ काम किया, या जिस दिन मैंने पहली बार उनके साथ वो सीन, पहला सीन जो किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे ये बहुत ज़्यादा चाहिए था. और शायद इसको चाहने के लिए या पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया और बहुत मेहनत की. बहुत जैसे कहते हैं चप्पल घिसना, और बहुत सारे अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं हार्डवर्क के, तो वो सारे एडजेक्टिव्स मैंने पूरे किए और तब जाकर फाइनली वो मैजिक हुआ. बट वो मैजिक जो है वो कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम से आएगा, वो किसी भी और तरीके से नहीं आएगा. सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद दैट ओनली, कि व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम एज एन एक्टर. व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आर वी ट्राइंग टू अचीव ग्लोरी, लाइक ही सेड, हम लोग सपना देखते हैं स्टार बनने का, पर क्या हम वही सपना देखने के लिए एक्टिंग शुरू करते हैं, या हम एक्टिंग में मजा आ रहा है इसलिए हम एक्टिंग शुरू करते हैं? ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा. ये आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड दैट्स अ काइंड ऑफ एनालाइजिंग विच यू नीड. वो आपको हर रोज अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ. अगर मैं आज की डेट में थिएटर कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे स्टेज पे खड़ा होना पसंद है, या जो टेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ उस टेक्स्ट में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और उस टेक्स्ट का और रस निकालने के लिए मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा है. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ड्रीमिंग टू बी अ स्टार. आई थिंक दैट इज द मेन डुअल. जो अगर आपको कोई भी सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं कि अगर कोई युद्ध है अपने अंदर, तो वो यही है कि आप कला के लिए आ रहे हो या आप फेम के लिए आ रहे हो. फेम सबको चाहिए ऑब्वियसली. आई थिंक हर कलाकार, कोई भी कलाकार, ऐसे कलाकार भी हैं जिनको फेम नहीं चाहिए, बट मोस्टली मैंने देखा है कि एक्टिंग से जो जुड़े होते हैं उनको ज़्यादातर एक, जैसे कहते हैं, पॉपुलैरिटी या एक पब्लिक अपील चाहिए. पर वो पब्लिक अपील के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, या अपने आप के लिए कर रहे हैं, या मज़े के लिए कर रहे हैं, या टेक्स्ट के लिए कर रहे हैं, या कोई मैसेज देने के लिए कर रहे हैं, दुनिया को, समाज को, अपने आप को. आई थिंक ये सारे सवाल अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट बिलीफ सिस्टम विल बेसिकली, वो जो है ना, वो आपका बेस है. उसके बाद आप जो भी करेंगे उस बेस को याद रखते हुए करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं. मतलब दैट्स द ओनली, आई थिंक, इन अ वे पॉजिटिव रूट towards achieving whatever you want to achieve. Thank you for putting that word belief system here. Would you like to get into how your belief system got made and how it grew stronger over the years? Actually, it's still getting made. मतलब मैं अभी भी I don't know what I like more. Whether I mean I definitely know one thing, कि जब मैं सेट पे होता हूँ तो मैं, मतलब बड़ा controversial है, क्योंकि मेरी बीवी सुनेगी तो बोलेगी ये थोड़ा कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन जब मैं सेट पे होता हूँ तो सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ मैं. मतलब मैं घर से भी ज़्यादा खुश शायद वहाँ होता हूँ जब मैं स्टूडियोज़ में होता हूँ, या मैं किसी फिल्म सेट पे होता हूँ, आउटडोर शूटिंग कर रहा होता हूँ. तो जब भी मैं वो कर रहा होता हूँ, मेरे लिए बाकी दुनिया मायने नहीं रखती है. कोई किसी तरह की चीज़ मुझे बॉदर नहीं करती है. खाना ख़राब मिल जाए तब भी चलता है, घर में अच्छा खाना चाहिए. तो मुझे ये समझ में ज़रूर आ गया है कि जो मैं करता हूँ
उस पर मुझे ज़्यादा मज़ा आता। उसके बाद आता है पैसा, उसके बाद आता है फेम और बाकी सारी चीज़ें जो किसी से कहते हैं जुड़ी हुई होती हैं एक एक्टर के साथ, पब्लिसिटी या इवेंट्स या 10 और चीज़ें। बट मेन चीज़ ये है कि मुझे शूट पे जाना बड़ा अच्छा लगता है। अब उस शूट पे मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैमरा फेस करना है, या कभी कभार होती है कि यू नो कि कहानी में बहुत कुछ मज़ा है। तो एक जैसे कि कोई एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम का कोई ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसा कोर्स है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम फटाफट दे दें क्योंकि आपको इतनी अच्छे से याद है या आपने इतनी बार काम किया है या रिवाइज किया है कि आप चाहते हैं कि उस एग्ज़ाम को अच्छे से दें और जाकर उसमें से नंबर मिले आपको और आप खुश हो जाएंगे। और अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद एक खुशी होती है हर किसी को, राइट? छोटे जब हम स्कूल कॉलेजेस में दिया करते थे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग एग्ज़ाम्स देते हैं अभी भी, बट तो वही आई थिंक वही वाली फीलिंग मेरे लिए होती है कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी कहानी है, तो मेरा बड़ा मन करता है कि यार मैं जाऊं और जाके इस चीज़ को परफॉर्म करूं। तो आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इवन दो आई थॉट ऑफ समवन लाइक मिस्टर बच्चन, बट बच्चन साहब खुद कहते हैं कि वो बाय प्रोडक्ट है उनके एक्टिंग का। और वो अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेते और ना ही चाहते हैं कि बाकी लोग भी लें। तो मतलब यू नो टॉप से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर बात हो ही रही है स्टारडम की तो सबसे टॉप पे देखें तो उनका जो अनुशासन है वो मैंने वो अनुशासन अगर आप ले आओ तो जिंदगी में शायद आप भी बच्चन बन जाओगे। और यही डिफरेंस है, क्योंकि वो डिसिप्लिन लाना वो कहने में और सुनने में और सोचने में बड़ी इजी लगती है, बट व्हेन यू सी समबडी डूइंग दैट and somebody who has probably done it for consistently for over what 50 years now, 50 साल 40-50 साल से तो काम कर रहे होंगे वो, उतने कंसिस्टेंटली रिवाइज करना, अपने आप को रिलेवेंट रखना, डायलॉग्स को या फिर सीन्स को बार बार रिहर्स करना, और वो एक मज़े के साथ जो काम करना होता है ना, वो मैंने उनको साक्षात देखा है। और वही मज़ा शायद तब आता था जब हम लोग थिएटर करते थे या पहली बार एक्टिंग के लिए कोई स्टेज पे मौका देता था। स्कूल में जब पहली बार मौका दिया होगा और आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि यार मुझे आज चांस मिला है, मम्मी डैडी देखेंगे, बाकी स्कूल के दोस्त देखेंगे, ये जो खुशी है ना, दैट इज आई थिंक द मेन टेक अवे। और कितने भी बड़े स्टार या एक्टर्स से आप जब भी बात करें या जो भी अचीव कर चुके हैं उनसे जब भी बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि वो लोग अपनी जिंदगी, मतलब whoever wants to, whoever has been in the industry for a long period, they have not taken themselves very seriously. उन्होंने अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने काम को बहुत सीरियसली लिया। और उनके लिए वही है जो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मज़े आने चाहिए यार लाइफ में, और वो मज़े तभी आएंगे जब एक्चुअली आप मज़े के लिए काम करोगे, बाकी सारी चीज़ों के लिए नहीं। थोड़ी देर के लिए क्या हम उसमें जाए कि आपने कैसे आपने थिएटर में आए और कैसे आपने कॉलेज में थिएटर किया, या बचपन में आपको क्या ऐसा कुछ इन्फ्लुएंसेस थे जिसके वजह से आप एक्टिंग में आए? हाँ, मतलब आई थिंक बहुत सिमिलर कहानी होती है सब, हम सबकी। कुछ नहीं पता था मुझे एक्टिंग के बारे में, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एक्टर हूँ या मैं परफॉर्मर हूँ। जब मैं ये भी देखता हूँ तो मुझे खुद भी अपने आप को रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ शायद मतलब मैंने कुछ काम ठीक किया है, क्योंकि अभी भी मैं उसी तलाश में हूँ, ऐसे ग्रोथ में हूँ कि मैं एज एन एक्टर हूँ क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और किन बातों को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ आई एम इन अ प्रोफेशन कॉल्ड एक्टिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट प्रोफेशन, इट्स अ बहुत बड़ा समंदर है। और उसमें से कभी कभार क्या होता है कि बहुत सतही लेवल पर हम लोग छू पाते हैं पूरे लाइफ टाइम में और ये मान लेते हैं कि हम एक्टर हैं, बट आई थिंक जो विधि है या जो प्रथा है वो बहुत ज़्यादा डीप है, उसके लिए बहुत साल की मेहनत, पूरे ज़िंदगी भर की मेहनत लग जाएगी, तब भी शायद हम हर पहलू को ना समझ पाए। बट वही आई थिंक साउथ इंडिया में था मैं, और मैं स्पोर्ट्स खेलता था। प्राइमरी स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई थी कलपाक्कम तमिलनाडु, और
वहाँ पर स्पोर्ट्स खेलते खेलते बेसिकली मेरा ध्यान जो था वो सारा चला गया कि मैं क्लासेस से कैसे बच पाऊँ, कि मतलब ये स्पोर्ट्स के लिए मुझे खाली टाइम मिल जाता है तो और ऐसी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे कि मुझे क्लासरूम में ना रहना पड़े। तो SCPW और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे एक सिंगिंग क्लास भी हुआ करता था। तो वो क्लास में मैं ऐसे ही जाके बैठने लगा। तो मेरी टीचर ने एक दिन मुझे कुछ गाना वाना गाने के लिए बोला और मैंने गा दिया, और उन्होंने बोला कि तुम रामायण करो। और मुझे वनवासी राम का कैरेक्टर मिला क्योंकि मैं सांवला था, जो गोरा लड़का था उसको राजा राम बनाया गया, और ये कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में। तो खैर, तो वहीं से मैंने कास्टिंग के कुछ पहलू समझ लिया था मैंने। तो वो मैं वहाँ पर करने के बाद मैंने वो जो टीवी वो एनुअल डे के बाद जो एक पूरा ऐसे जैसे AV बनाया, तो वहाँ पे भी इस तरह के सारा रिकॉर्डिंग बनाकर बच्चों को बाद में दिखाया भी जाता था कि देखो तुम लोगों ने ये किया है। तो मैंने पहली बार अपने आप को ऐसे ऐसे टीवी पे वो थिएटर प्ले में मैं वनवासी राम बनता हुआ, जैसे मैं एक लाश की तरह चल रहा था मैं स्टेज पे, और मैंने देखा कि मैं कितना खराब कर रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं, छोटा था, पर मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि ये बहुत बुरा है जो भी है, और ये तो एम्बैरेसिंग है इन अ वे कि मतलब मेरे दोस्त देख रहे हैं और बाकी लोग देख रहे हैं। अब उनको शायद उतनी परवाह नहीं थी, वो खुश थे कि मतलब उनका क्लासमेट प्ले में है और ये सब। बट मुझे वहाँ पे लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। पर तब उसके बाद आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा एक्टिंग, कि मुझे लगा यार ये क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो और क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या है जो मैं गलत कर रहा हूँ। और ये फिर मेरे अंदर एक तरह का कीड़ा बन गया, और इसको बेसिकली एक्टिंग बग का नाम दिया जाता है। वो एक्टिंग बग कभी भी काट सकता है, रात को 9:30-10 बजे के बाद, या कोई फिल्म देखते हुए वो काट जाता है, या सड़क पे कोई पोस्टर देख के भी काट सकता है, या कोई फिल्म देख लो आपको जो आपके दिल को छू जाए, उसके बाद भी आपको वो एक्टिंग बग काट सकता है। एक्टिंग बग कैसे भी काट सकता है और किसी भी तरह से आ सकता है। तो मेरे लिए वो इसलिए आया क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था वो। तो मैंने फिर जैसे कहते हैं सारे जो मतलब स्कूल में मेरे क्लास प्लेज होते थे, तो जो भी प्ले होता था मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, कुछ भी, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। और थैंकफुली मैं क्लास में हमेशा थोड़ा लंबे बच्चों में होता था, तो मुझे हमेशा मेन रोल या सेकंड मेन रोल मिल जाता था। तो बस वो करते करते स्कूल में धीरे 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 वो करते करते मुझे लगा कि हाँ अब मैं थोड़ा शायद बेटर कर रहा हूँ। फिर मुझे स्कूल टाइम की बात है, तब मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुका था। दिल्ली में भी मैंने कंटिन्यू किया, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे ऐसे क्लास प्लेज या जैसे कहते हैं स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट करने लगा। एंड एक तरह का जैसे कहते हैं शौक चढ़ गया, एंड देन शौक से, हॉबी से वो पैशन बन गया। और वो पैशन कब बना, जब मैंने फाइनली थिएटर इन अ वे प्रोफेशनली सीखा। जबकि वो कॉलेज थिएटर ग्रुप है प्लेयर्स किरोड़ीमल कॉलेज का, वहाँ मिस्टर केवल अरोड़ा जो कि इंग्लिश प्रोफेसर हैं और थिएटर क्रिटिक हैं दिल्ली के बहुत बड़े, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की। और प्लेयर्स के बारे में मतलब अगेन छोटा सा कनेक्शन ये है कि बच्चन साहब भी वहीं से हैं। उन्होंने आई थिंक 60s में उस कॉलेज में पढ़ाई की थी और हमारे थिएटर ग्रुप से थे। सतीश कौशिक साहब और भी अभी आजकल के बहुत सारे जनरेशन के एक्टर्स, मुन्ना भैया, दिवेंदु, so you know the Zishan, so there are many actors who have come from that theatre group, many directors। तो वहाँ पे जो माहौल था ना वो बड़ा अलग था, वो मैंने कभी नहीं देखा था, कभी सोचा नहीं था। प्ले नाटकों को पढ़ के उन नाटकों का विश्लेषण करना, उनके बारे में बातें करना घंटों घंटे, और क्या कैरेक्टर्स कहना चाह रहे हैं, सोशियो पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं, सोशियो इकोनॉमी रीजंस क्या हैं, इकोनॉमिकल रीजंस क्या हैं, ये सारे विचार विमर्श करते 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 सडनली समहाउ आई थिंक आई गॉट ड्रू इन, मतलब मुझे पूरा जैसे कहते हैं खींच लिया थिएटर ने। देश और विदेश के मतलब राइटर्स और वो प्लेज पढ़ना, कभी कभार ऐसे प्लेज होते जो समझ में नहीं आता था। हैरोल्ड पिंटर के प्लेज मुझे आज तक मुश्किल होते हैं
समझने के लिए, लेकिन तब भी पढ़ते थे, समझने की कोशिश करते थे। तो वो कोशिश कहीं ना दैट बिकेम द ड्राइविंग फोर्स। और फिर धीरे धीरे जब आप थिएटर में, क्या है कि यू आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर बॉडी अ लॉट। आपका शरीर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो आप अपने शरीर और अपने माइंड के साथ कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, एक कनेक्शन बिठा लेते हो, और उसमें बड़ा मजा आने लगता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है इन सर्टन सिचुएशंस, आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है इन सर्टन सिचुएशंस। तो एक तरह का खेल बन जाता है, तभी शायद इसको हम बोलते हैं खेलना, सीन को खेलना बोलते हैं ना, कि खेलते हैं, खेल के देखते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट बिकम्स दैट। तो ये सारी चीज़ें ना ऑन द वे, ऑन द जॉब, करते 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 समझ में आया। और बहुत, जब तक ये समझ में आया कि अब मुझे और कुछ नहीं करना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने एक्चुअली फिर उसके बाद कुछ सोचा ही नहीं। मैंने यही सोचा कि बम्बई जाके अब स्टार बन जाऊंगा, यही सोचा था मैंने भी। फिर जब बम्बई आया तो कहानी दूसरी शुरू हुई। उस पे आऊं? बिल्कुल। तो नाउ अभी द थिंग इज दैट इट्स वेरी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जब बाहर से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यार क्या है कि टैलेंट काफ़ी है। सबसे पहले चीज़ यही आती है कि मतलब टैलेंट है तो बहुत है, वहाँ पे लोग देखने के लिए हैं तुम्हारे टैलेंट को। बट जब बम्बई जाते हो तो आपको समझ में आता है टैलेंट तो सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आपका स्किल देखते हैं। और ऐसे शहर में फिर आप कैसे काम करोगे जहाँ पे जो चीज़ आपका हुक्म का इक्का था, वो चीज़ कोई देखने को राजी नहीं है। जैसे कहते हैं लोग, पहचानवाद या फेमिलियरिटी या नेपोटिज्म तो है ही, मतलब वो उसकी तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री को बहुत बार ये बोल दिया गया है, तो मतलब वो मान के ही चल रहे हैं कि वो तो है। बट उसके अलावा भी, मतलब इट्स नॉट ओनली restricted to that. There are so many other factors जिसकी वजह से आपको समझ में आता है यार कोई हमें देखना ही नहीं चाहता। और सबसे पहले जो आपके साथ, मतलब जैसे कहता है, मुझे लगता है किसी भी नए कलाकार के साथ जो सबसे पहले होता है, बॉम्बे रिजेक्ट करता है। इट डज नॉट गिव यू द सेम वैल्यू विच प्रोबेबली यू हैड इन योर ओन थिएटर ग्रुप, इन योर ओन सिटी, इन योर ओन विलेज। जब आप वहाँ पे काम करते हैं या प्लेस करते होंगे या कुछ और करते होंगे, तो तालियां की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठता होगा। और सडनली यहाँ पर तालियां तो छोड़ो, मतलब कोई गाली भी देने को रेडी। सो हाउ डू यू एडजस्ट टू दैट? ये बड़ा, जिसे कहते हैं, एक तरह का ट्रिकी सिचुएशन हो गया मेरे लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपन स्टार थे। ठीक है, वहाँ पे गली गली बच्चे जो हैं आपको जानते थे, आप न्यूज़पेपर में भी आए हो, क्योंकि रंग दे बसंती में जैसा दिखाया था, एक छोटा सा सीन किया था मैंने, ऐसे ही किया था। बट वो दिल्ली में बहुत बड़ी बात थी, कॉलेज में और बड़ी बात थी कि मतलब आप इतने बड़े आमिर खान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ऑफ कोर्स इट्स अ कल्ट फिल्म आल्सो, बट द आइडिया इज ऑलवेज दैट यू हैव वर्कड विद आमिर खान, यू वर्कड विद दिस पर्सन, दिस इज हाउ आई थिंक द मेंटालिटी वर्क्स. So of course I was quite a popular guy in my university and post university days also in theater, and then Bombay I was a nobody. And it takes time to understand that you are a nobody, क्योंकि आप एकदम से एक्सेप्ट करोगे नहीं ये बात, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े धक्के लगेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार अच्छा मैं एक्चुअली शून्य हूँ, अभी शून्य से मुझे वापस ऊपर उठना है. नाउ द थिंग इज कि ये जो पीरियड है ना, क्योंकि पहले एक्सेप्टेंस आएगी नहीं, मैं अब मतलब जितना भी आप मास्टर क्लास सुन लो, मैं बता रहा हूँ नहीं आएगी. आपको ये लगेगा कि पहले 1 महीने में जाके कुछ ना कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कमाल. और ये सोच के आई थिंक मतलब जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक द होल आइडिया इज कि आप अपनी पूरी लाइफ प्लान कर रहे हैं. ये सिर्फ चंद सालों की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की बात है. तो वो लाइफ प्लान थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि उसी बोल रहा हूँ कि लाइफ प्लान अगर आप किसी ऐसे फील्ड में कर रहे हैं तो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उतना लंबा तभी आई थिंक कोई भी खेल सकता है या खेल पाएगा जब उसका बिलीफ सिस्टम किसी एक चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो. जैसे कि अगर मुझे एक्शन करना है तो मैं रोज़ उठ के सुबह वर्जिश करूँगा, मैं बॉडी बनाऊँगा, मैं मार्शल आर्ट सीखूँगा,
या मैं मार्शल आर्ट रोज प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं एक्शन कर पाऊँ. अगर आपको बहुत अच्छा डांसर बनना है ऑन स्क्रीन, मैं एक्टिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो so that's why the belief system has to be very very strong. So when I came here, I knew that I want to be an actor. That is it. मतलब अब वो एक्टर मैं आज बनूं या मैं 10 साल बाद बनूं, उससे मुझे फर्क नहीं था. It didn't matter to me कि मुझे मेरे 20s में काम मिले या मेरे 30s में काम मिले या मेरे 40s में काम मिले या मेरे 50s में काम मिले. So then, of course, now the thing is that I don't come from a rich family. ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी जो हैं मुझे जिंदगी भर पाल सकते थे या उस टाइम भी पाल सकते थे. तो मुझे ये समझना पड़ा कि अच्छा मुझे काम तो करना पड़ेगा. I'll have to work. और ये चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो बुद्धि मेरे अंदर आ गई, लेकिन मैंने देखा कि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इट विल मेक और ब्रेक योर करियर और मेक और ब्रेक योर लाइफ इन बॉम्बे, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी सिटी. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिटी. द बिल्स आर हाई. आसान नहीं है वहाँ पे रहना. रोमांटिसाइज कर सकते हैं कि 4 लोगों के साथ एक कमरे में बैठ के गम बांट लेंगे और खुशी बांट लेंगे, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता. टिक सकते हो तो सिर्फ आप. अब वो कैसे टिक सकते हो, 4 लोगों के साथ या अकेले, वो आपको अपने आप डिसाइड करना है. तो काम मुझे यही लगा कि यार कुछ एक काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं एक्टिंग से जुड़ा हुआ रहूँ, उसकी प्रैक्टिस होती रहे और साइड बाय साइड जिसे कहते हैं मुझे थोड़े पैसे मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली मैं ना तो NSD जा पाया ना मैं FTI जा पाया, क्योंकि मैंने जिद से अपने 3rd ईयर के एग्जाम नहीं दिए थे. तो और मैंने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि मुझे उस टाइम लगा था कि अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास कोई और ऑप्शन होगा. तो आई वाज ट्राइंग टू लाइक ब्लॉक माय वेज. मैं थोड़ा ज़्यादा हार्श था, आप देख लेना. बट मैंने अपने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे किसी भी और फील्ड में जाने के. तो मुझे पता था कि मुझे यहीं आना है. तो फिर मेरे को फाइनली पता चला कास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर शायद मेरी रुचि बैठ सकती है, क्योंकि कास्टिंग में आपको क्यूज देने होते हैं. और मैं इसलिए बहुत बार बोलता भी हूँ कि जो कलाकार बॉम्बे शहर आना चाहते हैं, एक्टर्स, it's not a bad idea to actually try your hand in casting, you know. Be a casting assistant, do something with it. Intern बन जाओ 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, जितना भी है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से कहानियाँ आती हैं. डायरेक्टर्स उन कहानियों में अपने अपने किरदार सोचते हैं, पिरोते हैं, फिर हम जाकर उन कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं अलग अलग एक्टर्स में. तो किसी को जो तब समझ में आया कि जो मैं रिजेक्ट हो रहा था उसमें उनकी गलती नहीं या किसी डायरेक्टर की गलती नहीं है. शायद मैं वो जिसको ढूंढ रहे थे, अगर वो मैं होता तो वो शायद मुझ तक पहुंच सकते थे. लेकिन अगर मैं भीड़ का हिस्सा हूँ तो फिर वो कैरेक्टर जो है वो फिर भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकता. तो that has to come out from a human being. आपको देखकर मैं 10 कैरेक्टर्स के बारे में सोच सकता हूँ कि यार, बट हो सकता है 11वां कैरेक्टर के बारे में नहीं सोच सकता हूँ. तो यही है, आई थिंक दैट्स द होल गेम ऑफ रिजेक्शन, की कहानियां तो कम ही बनती हैं. तो अगर देखा जाए तो जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, बट एक्चुअली जो जॉब्स हैं, जो जॉब आपको करने हैं वो भी है. क्योंकि बहुत लोगों को टीवी नहीं करना, बहुत लोगों को अलग अलग ये चीज़ नहीं करनी, वो नहीं करना, फिल्म करना है. तो वो जो आपके भी कैटेगरीज हैं, जैसे वैसे ही डायरेक्टर्स के भी कैटेगरीज हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के भी कैटेगरीज हैं. तो आई अंडरस्टूड दैट. मतलब काम करते करते इन अ वे मुझे धीरे धीरे एक्टिंग के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, कि जो थिएटर और कैमरा एक्टिंग का जो एक डिफरेंस है, जो शायद मुझे 8 साल लग गए वो समझने में. क्योंकि शुरुआती 7 साल जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर था, ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की थी टू बी एन एक्टर. मैंने जाके ऑडिशंस दिए थे, पर मेरा कभी होता नहीं था. एक ऐड हुआ था मेरा 7 साल में, एक ऐड, और उसके अलावा मुझे कोई काम नहीं मिला. और मुझे यही दुख था कि ऐसे पोजीशन में रहने के बावजूद, जहां पर आप पावर पोजीशन में हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं पावर पोजीशन में हूँ तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल ही लूंगा, जो जिसकी गाली मुझे अभी भी पड़ती है बाय द वे. बट उस टाइम मैं वही बोल रहा हूँ कि 7 साल तक मैं नहीं कर पाया.
पर 8वें साल कुछ बदल गया। उसके बाद से चीज़ें आने लगी या होने लगी, और वो शायद इसलिए था कि मैंने अपना अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग बदला सडनली। अब वो मेरा पर्सनल टेक्निक है तो उसमें डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, बट द होल पॉइंट इज कि आई फाउंड माई सुर। जैसे कहते हैं ना, सुर ढूंढ रहा है हर आदमी, तो मुझे मेरे कैमरा एक्टिंग का सुर मिला किसी एक परफॉर्मेंस की वजह से। TVF का एक शो था पिक्चर्स, तो भाटी जो आप लोग जानते हैं, भाटी तू बियर है, तो वो पहला सीन था, वो छोटा सा सीन जिसने मुझे समझाया कि अच्छा कैमरा एक्टिंग होती कैसे। उससे पहले मैं एक्चुअली एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, जबकि मुझे लग रहा था कि आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग एग्जैक्टली जो मैं थिएटर के दिनों में करता था, पर वो कैमरा में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है। एक बहुत सिंपल थ्योरी यही है कि अब थिएटर में हम लोग 200 लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और कैमरा में हम एक इंसान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, हम पूरे ऑडिटोरियम के लिए कर ही नहीं रहे हैं। इट्स एन इंटीमेट एक्सपीरियंस फॉर वन पर्सन हु इज सिटिंग इन दैट, और वो हर आदमी मेरे परफॉर्मेंस को अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। ये जो सीख पता नहीं उस समझ में कैसे आया, मैंने शायद कहीं पढ़ा था या कुछ हुआ था, वो समझने के बाद मैंने अपनी कुछ स्टाइल को चेंज किया एज एन एक्टर, एंड आई रियलाइज दैट वर्कड बिकॉज TVF पिक्चर्स वर्कड एंड दैट कैरेक्टर वर्कड। और उसके बाद से देन आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। मैं रोज, क्योंकि कैमरा एक बहुत अलग चीज़ है, वो आपके ऐसे ऐसे नुआंसेस पकड़ती है जो आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर है। तो बहुत बार जब मुझे किसी चीज़ की तारीफ होती है तो मुझे खुद ही नहीं पता होता है कि अरे ये चीज़ मैंने अच्छा किया और वो दिख भी गया, और अच्छा ऐसे दिखा, मैं कुछ और कंसीव किया हुआ था। बिकॉज इट रियली it's almost like the lenses are like it's science, right? So it really captures such emotions which even you are not aware of. So that is why the feel, that's what they say, they keep saying in camera, feel. That is why you have to go more internal, because the more internal you go, somehow the camera captures everything, you know. और जितना आप external जाते हो फिल्म एक्टिंग में, उतना ही कैमरा कम कैप्चर करता है। कमाल की बात। तो और जो कि थिएटर से एकदम अलग है। तो ये सारी सीख जो है, ये मुझे धीरे धीरे मेरे कास्टिंग रूम्स में दूसरे एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके, डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके, ये धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग, एंड समहाउ आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक इन अज्जी, as you said. सुषमा देशपांडे जी थी उसमें, कमाल की एक्टर है। एंड सो दैट वाज द फिल्म, पहली फिल्म थी, चाइल्ड अब्यूजर का रोल था। नाउ थिंग इज दैट इस तरह के कैरेक्टर्स में शुरू में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक कन्विंस योरसेल्फ दैट यू आर दैट पर्सन, और especially when you are doing it for the first time, such a big role in a film which is going to be out in the public, and that journey, that entire journey is completely dependent on the director. So Devashish Makhija की जो इच्छा थी, जो चाह थी कि वो जिस तरह से मुझे लेके जाना चाहते हैं कैरेक्टर की तरह, I completely surrendered to him, and once I surrendered, I think I completely lost myself in that process. So Ajji was actually a very tough film for me personally and professionally. But from there on, I somehow learnt my way and did all the other work. Okay. So as you said about lensing, that theater का और आप जब कैमरा के सामने परफॉर्म करते हो वो एक डिफरेंस बन जाता है. So how important right now, especially after lockdown, when actors are shooting their own auditions, so in a way it's also video production for the actor जब वो कुछ भेजते हैं. In that context also, और कैमरा एक्टिंग context में भी कितना ज़रूरी है एक एक्टर के लिए टेक्निकल नॉलेज होना फिल्म मेकिंग का, to know about lenses, to know about... आजकल तो आई थिंक टेक्निकल नॉलेज सबको ही है, मतलब आई थिंक बिकॉज ऑफ कोर्स थैंक्स टू इंस्टाग्राम 30 सेकंड की फिल्में तो सब बना ही रहे हैं, या 1 मिनट की फिल्में सब बना ही रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं. तो इनफैक्ट जितना टेक्निकल नॉलेज प्रॉब्ली मेरे जनरेशन ऑफ एक्टर्स को रहा होगा, उससे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज इस वक्त की जनरेशन के एक्टर्स को है, जितना मुझे
ऐसा लगता है। और अगर नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़, मतलब दिस इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग, मैनी एक्टर्स वुड से कि आप दूर रहो टेक्निकलिटीज से, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि यार टेक्निकल नॉलेज रखो, समझो कि क्या कहते हैं कैमरा कौन सा एंगल पर रखा हुआ है, कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है। बहुत बार ये द थिंग इज़ दैट ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल वुड से दैट अरे कैमरा भूल जाओ, अपनी परफॉर्मेंस करो चाहे वाइड हो या क्लोज हो। अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह की इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं जहाँ पे एक्टर्स को बहुत मौके दिए जाते हैं या बहुत टाइम दिया जाता है टू परफॉर्म। वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी टाइट बजट एंड टाइट टाइम वाली मतलब स्पेस में काम करते हैं। ज़्यादा टाइम होता नहीं है सेट पे, ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि क्या कहते हैं आप हर बार जो है उस फील को करते रहो, तो आप कितनी बार करोगे? यू नो देयर विल बी टाइम, बिकॉज थिएटर की तरह है नहीं कि आपने एक बार परफॉर्म कर दिया बात खत्म हो गया। आपको परफॉर्मेंस एक बार किया वापस रिवाइंड करना है, वापस करना है, और आप कितनी बार वो चीज़ फील करोगे? तो आप you have to save your emotions, you have to learn how to save your emotions for the angles. It's very important. because कभी कभार क्या होता है कि वाइड एंगल लगा हुआ है, दूर है, आप दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपने सारी परफॉर्मेंस कर दी है। अब जब तक आप पे क्लोज आया आपको फील सडनली आ नहीं रहा है। इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आप एक ही रस को बहुत टाइम तक खींच पाए, और एक रस तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं वही ब्रीदिंग चेंजेस, माइंड बॉडी के साथ खेलना पड़ता है, तब जाकर आप किसी रस तक पहुंच पाते हैं, और उसके बाद वो परफॉर्मेंस शुरू होती है, एंड सडनली प्रोबब्ली यू यूज ऑल द जूस इन अ वाइड शॉट एंड दैट्स इट। आपके क्लोजेस में जब आए तो शायद वो चीज़ नहीं निकल के आ रही है जो वाइड में निकल के आएगी। तो इसलिए आई फील थोड़ा टेक्निकल नॉलेज जानना ज़रूरी है। जैसे कि आई कांटेक्ट होता है थिएटर में, वैसे ही कैमरा का भी एक तरह का एक आई कांटेक्ट होता है, जो कि ऑफ कोर्स यू आर नॉट लुकिंग टू द कैमरा बट द कैमरा इज लुकिंग एट यू, एंड यू शुड नो हाउ द कैमरा इज लुकिंग एट यू। इट विल रियली हेल्प यू, यू नो, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। आई हैव सीन लाइक इट्स बिकॉज समटाइम्स वी, अगर जैसे कैमरा मेरे सामने है और मैंने अगर सारी चीज़ें यहाँ से अगर मुझे कैप्चर कर रहा है तो मुझे पता है कि मुझे किस एंगल से कैप्चर कर रहा है। तो मेरी ये मतलब आई विल हैव टू यूज दिस साइड ऑफ माई फेस विच इज ऑल्सो लिट, दिस साइड इज नॉट लिट अकॉर्डिंग टू दिस कैमरा। आप समझ रहे हैं? द होल पॉइंट इज कि क्या हमारे पास पूरी लाइट है, लेकिन कैमरा जब ये लाइट पकड़ती है ये वाला, तो नाउ व्हेन आई एम एक्टिंग, even though I have to be unaware, I know that this is getting captured more than this. So how much control you actually need, you know, in film acting, where you actually have to sit and, you know, work it out like that. But this will come with on-ground practice. This will come with probably more watching films and watching classes, master classes by, you know, in YouTube में आप बहुत सारे ऐसे classes देख सकते हो जहाँ पे they'll teach you आई कॉन्टैक्ट्स एंड वॉइस थ्रू एंड एवरीथिंग, जो कि जैसे कि आप थिएटर में करते हो उसी का एक रूपांतरण जो है यहाँ पे होता है। इसलिए मैं बहुत बार देखता हूँ कि जैसे FTI से जो निकले हुए एक्टर्स होते हैं वो समहाउ दे आर ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव टू सी ऑन स्क्रीन। वो जो अट्रैक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, it's because they have so many knowledges, because they have done unka, I think first year is all about film appreciation course where they learn everything from editing to camera to, you know, direction. सारे बच्चे सब चीज़ करते हैं, तो उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब होती है ना लाइट की, कैमरा की, तो वो लोग somehow उनका जो कॉन्फिडेंस है कैमरा के सामने खड़े होने का या एक्टिंग करने का, वो एक रेगुलर एक्टर से डिफरेंट है। और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि इट्स नॉट an FTI actor is always confident in front of camera, and probably an NSD actor, for the first few क्या कहते हैं projects, they'll always be very unsure of where to stand, what to do, और वो unsurety कहीं ना कहीं आपकी performance में भी आने लगती है। Why I use NSD and FTI is because NSD is a completely different expertise and FTI is a completely different expertise, but both are collaboratively working towards the same goal. So sometimes probably an NSDN
would bring up a character which an FTIN might not be able to get. Okay. You know, because of the training is different. But how to get that performance in camera, that probably an FTIN would know better than an STN. Okay. Would you like to quickly go into how Casting Bay was started and where it is now? And then we go into casting. It started like that only, as I said कि मतलब मैंने शुरू किया because मुझे कुछ काम करना था, मुझे कुछ एक तरह का जुड़े रहना था इंडस्ट्री से और वो करते करते फिर मुझे धीरे धीरे मजा आने लगा. अगेन मजे आने चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप चाहे लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, यू शुड हैव फन विद इट. तो मैं कभी रो पीट के नहीं करता था कास्टिंग, मुझे मज़ा आता था. आई टू थिंक यार ये सही है. आई एम लाइक सिटिंग विद डायरेक्टर्स एंड इंटरेक्टिंग विद देम. आई हैव दिस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कास्टिंग दीज 200 एक्टर्स. छोटे बड़े कैरेक्टर्स मिलाकर मुझे एक बड़ी फिल्म में कास्ट करना है. मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेता था और समहाउ खुद की शायद जैसे कहते हैं इच्छा जो थी वो दूसरों को इच्छा जब पूरी होती थी तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी मिलती थी कि ओके लाइक यू नो दिस न्यू एक्टर वाज कास्ट बाय मी. और यू नो दिस एंटायर फिल्म में बहुत बार बोलता था कि देखो ना इस फिल्म में इनके अलावा सारे एक्टर जो हैं वो नए हैं. और तब मैं अगेन 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ और आप मेरे पिताजी फाइनली बैठ के जो फिल्में देखते हैं तो वो मुझे बहुत बार कहते हैं कि यार आजकल तुम लोगों की फिल्मों में एक चीज़ अच्छी हो रही है, एक आध नोन चेहरे ले रहे हैं, बाकी सारे नए चेहरे ले रहे हैं और सारे अच्छे एक्टर्स हैं. तो ये जो दिस होल चेंज एक्चुअली हैपेंड प्रोबब्ली 12 years back when गौतम, शानू शर्मा, मुकेश छाबड़ा, नंदिनी श्रीकांत, हनीत रेहान, इस तरह के कास्टिंग डायरेक्टर्स तब नए मतलब वो लोग पहले से ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स थे. बट तब एक कास्टिंग का चलन बॉम्बे में नया नया शुरू हुआ था. जब फिल्म मेकर्स बोल रहे थे कि हाँ हमें बाहर के एक्टर्स देखने हैं, आप हमें आउटडोर से एक्टर लेकर आओ. राजस्थान में शूट कर रहे हैं तो राजस्थान के एक्टर्स चाहिए, या दिल्ली में शूट कर रहे हैं तो दिल्ली के एक्टर्स चाहिए. नो वन किल जैसे कि अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सिर्फ दिल्ली थिएटर के एक्टर्स मिलेंगे एंड कम्प्लीटली कास्ट फ्रॉम देयर. So this was like a very new journey, and also it was also for me it was a part of the revolution which always any youth wants to bring, right? कि अगर आप जाते हैं तो आप सिस्टम को गाली नहीं दें, आप सिस्टम के पार्ट बने, हिस्सा बने और वहाँ से चेंज लाना शुरू करें. और फिर धीरे धीरे आपको मिर्ज़ापुर मिलता है, फिर आपको पाताल लोक मिलता है. पर वो बहुत सालों के लिए, बहुत सालों की मेहनत चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो एकदम से नहीं होता है. वो कन्विंस करना जो ऑलरेडी गड़े हुए बैठे हुए हैं, कभी कभार मतलब lack of a better word I would say that conservative thoughts, you know, because they've been only doing that for X number of years. हमारा काम ये है कि हम उनके जो बनाए हुए मिसाल हैं उन मिसालों पे चले या नए मिसाल बनाए. एंड आई थिंक अगर हम नए मिसाल नहीं बना पा रहे तो फिर एटलीस्ट सोचे. You know, I'm not saying that you have to always create a different path. At least think of a different path so that when you have the power, you can use that. It's as simple as that. क्योंकि power का shift जो है वो तो होगा. हमेशा किसी एक इंसान या एक व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्ति विशेष के पास पावर नहीं रहेगा, वो बटेगा, वो धीरे धीरे टूटेगा. तो जब वो बटेगा, जब वो टूटेगा, जब आपके पास आएगा, क्या आप वही चीज़ दोहराना चाहेंगे जो आपके you know predecessors ने किया है, या आप कुछ नया करना चाहेंगे? ये आपके ऊपर है. So for me it was that I wanted to do something different, I wanted to do something new, I wanted to create a ecosystem जहाँ पर actors जो हैं वो घबराए नहीं auditions देने के लिए. वो ये ना सोचे कि यार हमारी इज्जत का फालूदा बन जाएगा जब हम इस ऑडिशन ऑफिस में जाएंगे, कोई हमें कुछ बोल देगा, कोई सुना देगा, कोई हमें बाहर निकाल देगा. आई थिंक इन सारी चीज़ों से दूर रखकर एक कंपनी खोलने की सोची थी कास्टिंग बे. जैसे कि बॉम्बे, मतलब सारी शिप्स जो हैं वो बॉम्बे में आती हैं, वैसे ही सारे एक्टर्स जो हैं वो कास्टिंग बे में आते हैं. इस तरह की सोच थी मेरी. एंड दैट इज हाउ यू नो दिस होल थिंग स्टार्टेड फॉर द एक्टर्स. इट वाज मोर देन मी और अनमोल, इट वाज फॉर द एक्टर्स कि आप लोग, it is your space, you have to you know help us actually get you roles, not the other way around.
तो और उसी तरह से अभी भी जैसे कहते हैं कास्टिंग में फंक्शन करता है, वी ट्राई एंड जितना भी कोशिश यही रहती है कि नए नए एक्टर्स को ढूंढ के निकालें और उनको मौका दें। और इतने सारे हैं कि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि यार हमें मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो को मौका मिला लेकिन वो बहुत कम संख्या में है, जिनको नहीं मिलता वो हमेशा ज़्यादा संख्या में है और रहेंगे। सो टू थिंग्स, एक तो पहले आपने जिस रेवोल्यूशन के आइडिया से कास्टिंग में शुरू किया, इट वाज ऑफ कोर्स बिकॉज उस टाइम आपको सर्टन चीज़ें लगी होगी, कुछ प्रॉब्लम्स लगे होंगे, और फिर उसको रिवाइज करने के लिए आपने एक यंग वॉइस सामने लाया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ नाउ यू एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, यू केम एज एन एक्टर, but now that you are a casting director, how do you see the scenario as how an actor might look at it? And second, there are a lot of roles where you cast yourself in casting bay. So is that only the power you're exercising, which you said, or is it also the creative freedom, creative choice? The first question में क्या मैं समझा नहीं first question. कास्टिंग बे ने क्या ऐसी चीजें लाई है इंडस्ट्री में जो पहले नहीं थी, जो आपको जिस चीज की जरूरत है लगती थी? नहीं, that's why I give an example like मिर्ज़ापुर. I think सबसे बड़ा मेजर जिसे कहते हैं अगर एग्जाम्पल है जहाँ पर कास्टिंग के थ्रू लोग स्टार बने, वो है मिर्ज़ापुर. क्योंकि मिर्ज़ापुर आने से पहले वो सारे एक्टर्स जो थे वो मतलब कुछ लोग टॉप लाइन एक्टर्स को छोड़ दें तो उन्होंने कुछ कुछ काम किया था, बाकी सब ने कभी कुछ काम ऐसा कुछ किया नहीं था, किसी का कुछ खास था नहीं. और वो इकलौता शो है जहाँ पर छोटे से छोटा कैरेक्टर भी जो है वो रातों रात जिसे कहते हैं फेमस हो गए. इनफैक्ट वो चाचा डैश चाचा जो थे, ठीक है, तो वो जो चाचा थे उनके भी इंटरव्यूज हैं यार. मतलब उनको भी लोगों ने क्या बोलते हैं, और उनका क्या दो सीन का पूरा आई थिंक रोल रहा होगा उनका. फर्स्ट सीजन में एक सीन और सेकंड सीजन में एक सीन. तो ये चीज थी भाई साहब जो हम को करने की, और हम सोचते थे कि ऐसा होगा, कभी तो ऐसा होगा. क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि जो लोग पुलिस वाले करते थे फिल्मों में वो सारे पुलिस वाले ही करते थे. जो आदमी कॉमेडियन था तो पूरी जिंदगी में कॉमेडियन ही रहा, उसको किसी ने मुड़ के नहीं देखा भाई कि तेरे को कुछ और रोल दे दे. मनोज पावा सर इतने अच्छे एक्टर हैं, मतलब यू नो वी हैव बीन ऑलवेज गॉटन अ मैन हु इज ईटिंग समोसास फॉर सम रीजन, यू नो, इन फिल्म्स और इन शोज और एवरीवेयर. वो बहुत बाद में जाके क्या कहते हैं वो आर्टिकल 15 आई थी अनुभव सिन्हा ने, जहाँ उनको एक अलग अंदाज में दिखाया गया. वो दिखाया क्यों गया? क्योंकि आप बाकी और जगह पे देख रहे हो कि कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं एक्टर्स को अलग तरीके से कास्ट कर रहे हैं. तो सडनली डायरेक्टर्स कंपेल हो गए, उन्हें लगा कि हाँ यार मुझे भी क्या कहते हैं कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जो कि अलग हो. जैसे कि मुझे याद है जब पाताल लोक में मैरियम को कास्ट किया था जो कि एक ट्रांसजेंडर है फ्रॉम मणिपुर, तो मुझे याद है अगली फिल्म जब दिवाकर बैनर्जी के साथ हम करने गए तो दिवाकर सर ने सबसे पहली चीज ये बोला, यार इस कैरेक्टर को हम लोग ट्रांसजेंडर कर देते हैं. सो द थिंग इज दैट यू नो दैट थॉट दैट ही बिलीव्ड दैट इफ आई क्रिएट अ कैरेक्टर ऑफ अ ट्रांसजेंडर दीज गाइज कैन कास्ट. और हमें झूठ करने की दिखाने की जरूरत नहीं कि लड़के को बना दिया या लड़की को बना दिया. हम एक्चुअली उस जेंडर के पास जा सकते हैं और उस जेंडर का एक एक्टर ला सकते हैं जो मैं कंसीव कर रहा हूँ अपने दिमाग में. सो दैट freedom of casting actors without any kind of physical attribute, जिसे कहते हैं ना, बहुत बार हम पुलिस वाले को यही देखना चाहेंगे कि वो गठीला होगा, लंबा होगा, पर ज़्यादातर पुलिस वाले ऐसे होते नहीं, उनकी पेट निकली होती है ना, और वो बेचारे भाग भी नहीं पाएंगे, यू नो, एक किसी खूंखार सिनेरियो में. तो वो सोच बदलना, क्योंकि शायद उससे वो सीन और बेटर हो जाता है ना. कि अगर आप देख रहे हैं एक पुलिस वाला भाग रहा है, एक गुंडे के पीछे गुंडा तेज भाग रहा है, पुलिस वाला तेज भाग रहा है, ये आपने बहुत बार देखा है, ये हमने बहुत बार देखा है. पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि गुंडा भाग रहा है, पुलिस वाला नहीं भाग पा रहा है, वो गिर रहा है. और वो कैसे होगा? अगर आप
उस कास्टिंग को उस तरह से कंसीव करें. So that's why I feel that that it has of course brought in a lot of change. और धीरे धीरे अब तो आई थिंक वो टाइम आ गया है जहाँ पे OTT पे तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देख ही रहे हैं. एंड होपफुली slowly and steadily we will see that happening more in films also. But recently I think 12th Fail is a very big example of good casting, of a film which is successful without any so-called A grade star. So I also realized that in a way casting ने writing में भी एक liberty लाई है, जैसे आपने example दिया. मतलब लिबर्टी राइटर्स, हाँ मतलब बिल्कुल ये कह सकते हो कि राइटर्स अब थोड़े और बोल्ड हैं. नाउ दे आर नॉट वरीड कि यार मैं मलयालम कैरेक्टर लिखूंगा तो वो नहीं मिलेगा. उनको ये डर नहीं है जो पहले डर था कि यार कोई एक्सेप्ट करेगा क्या, कौन जाके ढूंढ के लाएगा मल्लू एक्टर, या मैं ऑथेंटिक बंगाली कैरेक्टर लिखूंगा जो उड़ी बाबा नहीं बोलेगा, जो मतलब असली बंगाली बोलेगा, या अगेन वही पंजाबी मतलब बल्ले बल्ले नहीं करेगा, अलग मतलब मैं ऑथेंटिक कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, तभी कोहरा बनती है. करेक्ट. तो कोहरा इसलिए बन पाती है बिकॉज आपको पता है कि अचीवेबल है. आप सोच सकते थे कुछ टाइम पहले कि इस तरह की पंजाबी शो, मतलब जिस तरह की पंजाबी बोली जा रही है कोहरा में, वो एक वाइडली एक्सेप्टेड नेशनल प्राइम हिट शो है. पहले इम्पॉसिबल था कंसीव करना, सोचना, क्योंकि आप हमेशा उस कॉम को या तो कॉमेडी में देखना चाहेंगे या गानों में. कभी ह्यूमन ड्रामा में देखा ही नहीं हमने कैरेक्टर्स. एंड सडनली यू आर सीइंग दैट, सडनली यू आर सीइंग सूप में देखा है लोगों ने, सूप देखा, किलर सूप. उसमें जैसे कि मनोज बाजपेयी सर हैं, कोंकणा मैम हैं, एंड देन यू हैव सो मेनी साउथ इंडियन एक्टर्स. And it's not looking off. लग रहा है हाँ इसी देश की है, हिंदुस्तान की कहानी है, कोई अलग देश की नहीं लग रही है. जो पहले लोगों को लगता था कि यार ये तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, दूर हो गया, समाज से दूर हो गया, पर वो नहीं हो रहा है. सो इन अ वे हम देश में एकता भी ला रहे हैं. एंड जो आपने सवाल पूछा था कि वो जो हाँ मेरा कि क्या वो नहीं यार, फेमिलियरिटी डेफिनेटली वर्क करी मेरे लिए, क्योंकि जब मुझे स्त्री मिली, अज्जी जब मुझे मिली, तो मुझे लगता था कि अज्जी देवाशीष ने मुझे इसलिए दी क्योंकि देवाशीष चाहता था कि मैं उसके लिए कास्टिंग करूं. तो मुझे अभी भी ये शक है, क्योंकि वो मुझे बोलता तो ऐसा ही है कि नहीं तुझे तेरी आंखें बड़ी मुझे ऐसी लगी, पर मुझे अभी भी शक है कि उसको करानी कास्टिंग थी तो उसने बोला कि तू रोल कर ले ये वाला. जो आजकल एक्चुअली बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स बोलते हैं, करण मेरा मैनेजर भी यहाँ पे आते हैं ना, बहुत लोग जो बोलते हैं कि अरे ये रोल कर लेना, आप कास्टिंग भी कर लो साथ में. तो मैं नहीं, मैंने कहा ऐसे नहीं है यार, 1 पे 1 फ्री नहीं मिलेगा. तो वो एक पहली बार मुझे इस तरह से काम मिला, देवाशीष ने मुझे जब काम दिया. लेकिन स्त्री जब मुझे मिला तो स्त्री की कास्टिंग में नहीं कर रहा था. अमर कौशिक जी ने 2 और शशि और शिव नए कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, फैंटास्टिक वर्कर्स. तो उनकी कास्टिंग थी वो. मैंने जाके बाकायदा ऑडिशन दिया वहाँ, ऑडिशन दिया और मेरा हो गया. ये ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मेरा ऑडिशन देने से हो जाता था, पर ये पहली बार हुआ. तो मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ. बट आई ऑल्सो फील दैट देयर इज अ रियलिटी ऑफ फेमिलियरिटी. ऐसा नहीं है कि मतलब अमर कौशिक कोई दूर के डायरेक्टर नहीं थे, मुझे बहुत सालों से जानते थे. वो इसलिए इतने सालों से जानते थे क्योंकि मैं कास्टिंग कर रहा था. मैं नो वन किल जेसिका में एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था, वो खुद एसोसिएट डायरेक्टर थे उस फिल्म के. गोवा गॉन में वो एसोसिएट डायरेक्टर थे. तब मैं कास्टिंग करता था और उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके बोला कि एक छोटा सा रोल है केमिस्ट का, ये आराम नगर यारी रोड में शूट हो रहा है. मैं आराम नगर में, इट्स लाइक अ 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तू आ जाएगा, 5,000 रुपये में मिलेंगे. तो मैं चला गया था. तो एक तरह की मेमोरी और एक तरह की मतलब जैसे कहते हैं अगेन लाइफ जी थी मैंने अमर भाई के साथ. उनके साथ एक रिश्ता तय हुआ था जो कि सिर्फ काम का रिश्ता नहीं था. ऑफ कोर्स काम के लिए इज्जत थी एक दूसरे के लिए, पर उसके अलावा भी एक रिश्ता था. तो उस वजह से डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मेरा नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 की पोजीशन में पहुंचना उस कैरेक्टर को लेके ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि वो उनकी भी पहली फिल्म थी.
तो ऐसा नहीं था कि उनके पास सारे पावर्स थे कास्ट करने के। राजन डी के भी इन्वॉल्व थे, दिनेश विजन भी इन्वॉल्व थे, बट तो मेरा थोड़ा टैलेंट जो मैंने बोला कि वो भी जरूरी है, वो भूल गए थे हम, तो मेरा थोड़ा टैलेंट वो, और बहुत सारे सालों की क्या कहते हैं लाइफ, बिलीफ सिस्टम और फेमिलियरिटी, और एक फिल्म इंडी अज्जी, ठीक है, इतनी सारी चीजों मिलाकर मुझे वो एक ब्रेक मिला स्त्री, ठीक है। तो वही पावर की बात कर रहे हैं, उसकी it's impossible to have that kind of power. If I had that power, I would cast myself in every film and every show I'm doing. Why not? Why not? But मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही मैं बोल रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें एक साथ अलाइन हो ही नहीं सकती हैं, उतने सारे कैरेक्टर्स हो ही नहीं सकते हैं जहाँ पर मैं हर कैरेक्टर कर पाऊँ, या जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्टर को मैं अच्छा एक्टर लगूं। अगर मैं दो डायरेक्टर्स को बहुत अच्छा एक्टर लगता हूँ, तो आई एम श्योर कि 6 डायरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिनको मैं नहीं अच्छा लगता हूँ, और मुझे कॉन्स्टेंटली प्रूव करते रहना पड़ेगा कि नहीं यार मैं अच्छा हूँ, देख लीजिए, एक बार काम देख लीजिए मेरा। तो वो प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। तो वही बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू कास्ट देमसेल्व्स अनलेस एंड अनटिल आपके पिताजी प्रोड्यूसर है। तो ऑडियंस के लिए ओपन करें जी, ठीक है। तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, एक तो हम माइक पास करेंगे और आप सिंपल और स्वीट सवाल रखिए, बहुत अपने इंट्रोडक्शंस में मत जाइए, और सीधा सवाल पूछ के आप बिक्की प्लीज वगैरह बोलने मत लगाइए इनको, सीधा जस्ट फैन चैट थोड़ी है, तो मतलब प्रॉपर है। मुझे बोला गया था थिएटर के लोग हैं सारे यहाँ पे। So I have a question here. So Yes, recently I watched this movie Lapata Ladies. Yes, sir. And I just loved it. So आप कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे? Casting was so amazing. All new faces except for I think one guy who is from that Jamtara वाला. Jamtara, yeah. But then amazing movie. So आप उसके बारे में कुछ बता? सर अनफॉर्चुनेटली मैंने फिल्म देखी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब बहुत तारीफ सुनी है। कास्टिंग प्रोसेस के बारे में मैं जानता हूँ, वो रोमिल ने कास्टिंग की है, और यही मैंने सुना है, और मैंने जितना भी मतलब जितना मुझे पता है उस फिल्म के बारे में, ये है कि वो गांव में, जिस गांव में शूटिंग कर रहे थे, उस गांव के आसपास जाकर चेहरों को ढूंढा गया है। तो कास्टिंग जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, कि उस तरह की फिल्म बिना कास्टिंग के बनी नहीं सकती। You can't cast, actors or stars and make a Lapata Ladies. You will actually need to go and find Lapata actors. तो सर क्या मूवी बनी है सर? जी सर, मैं किरण जी को जब भी मिलूंगा बता दूंगा। थैंक यू सर। Hi Abhishek. Hi. Yeah, actually I'm Dinesh and Hi Dinesh. यहाँ से नागपुर और विदर्भ में there is a one belief that अगर एक्टिंग में आना है सामने, तो you are supposed to go through theatre. And जैसा कि you said कि theater acting is a अलग, it's a different way, and when you go for a camera, so what are your suggestions, like, because theater acting, it takes a lot of time to get into and train, so is there any way out that we can save our time and get into the camera acting? And so Sir, I think I'll बिना थिएटर के तो मुझे लगता है कि मुश्किल है सर एक्टिंग सीखना। तो मैं तो यही मानता हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट डन थिएटर, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैमरा एक्टिंग। आई डोंट नो मेनी गुड एक्टर्स हु हैव नॉट डन थिएटर एंड बिकम एक्टर्स। सो अगेन, आपका वो बिलीफ सिस्टम क्या है? अगर आप बिना थिएटर ट्रेनिंग के एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी जो कि आपको कैमरा एक्टिंग में फेस करनी होगी। जो मैं बहुत बार देखता हूँ कि यार मुझे उस तरह का ग्लास नहीं मिला जो मैंने सोचा था, तो मेरी एक्टिंग ख़राब हो जाएगी, और मैं फिर अपने सेट पे एडीज़ को बोलने लगूंगा कि यार मुझे वो ग्लास ला के दो, क्योंकि मैंने थिएटर नहीं किया, मैंने इमेजिन करना सीखा नहीं है। तो द थिंग इज़ दैट इमेजिनेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्टर, एंड दैट कम्स फ्रॉम थिएटर, दैट डजंट कम फ्रॉम कैमरा। Because in camera you have to feel, you can't imagine. But that's the thing that आजकल के टाइम में मैं तो और इनफैक्ट एक चीज़ और बोलूँगा कि अभी के टाइम में, अभी नेक्स्ट 20 years India is going to make a lot of CGI movies,
जब आप ग्रीन स्क्रीन पे काम कर रहे हैं बेसिकली आप थिएटर में काम कर रहे हैं, तब आपके वही स्किल्स काम आते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली आपके सामने कुछ है नहीं, बस ऐसी एक स्टूडियो है जहाँ पे चारों तरफ ब्लू या ग्रीन स्क्रीन लगा दिया जाता है, वहाँ पे बोल दिया जाता है कि यहाँ पे झरना है, यहाँ पानी है, ये वो है। अब उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है जिन्होंने थिएटर नहीं किए, क्योंकि बोल रहे झरना कहाँ है, नहीं दिख रहा झरना यार, हमें तो आदत है झरने पे जाते थे, पानी में भीगते थे और करते थे, अभी बोल रहे झरना है यहाँ पे, बोल रहे जैसे भेड़िया की थी तो अब वहाँ पे वो ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे भेड़िया था, पर अब वो देखना है कि वो भेड़िया है, अब वो कैसे होगा। So I feel that it definitely, like, and also theater for me is also a very, how do you put it? It's like a grooming exercise also. It's not only about acting. It's also about your thoughts. It's also about the kind of text you read when you read them. And कुछ तो जाता है अंदर, तो आपके अंदर का जो इंसान है वो कुछ ना कुछ तो बदलता है, और वो दिखता है हमेशा। थिएटर किए हुए जो कलाकार होते हैं या इंसान होते हैं, बहुत बार ऐसे लोग भी मिला हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में शायद एक्टिंग नहीं की है, लेकिन वो बोलते हैं कि यार मैंने अपने कॉलेज टाइम में 3 साल थिएटर किया था। और उन लोगों से बात करने में और जिन्होंने शायद थिएटर नहीं किया, बात करने में थोड़ा एक डिफरेंस रहता है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एन ईजी वे आउट, देयर हैज टू बी, इनफैक्ट समटाइम्स आई फील बैड दैट अनफॉर्चुनेटली नाउ आई कैन नेवर गो बैक टू, मतलब आई इवन इफ आई वांट टू, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू एक्ट ऑन स्टेज नाउ। वो मेरा गला, मेरी बॉडी मेरा साथ देगी कि नहीं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मुझे वापस 6 महीने ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को थिएटर के लिए, उसके बाद जाकर शायद मैं एक प्ले कर पाऊँ। तो वो सर ज़रूरी है सर, करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। हेलो सर। यस सर। सर मैं कास्टिंग का जो कास्टिंग प्रोसेस है उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ जी। कि जनरली अभी जैसे रीजनल फिल्म्स बन रही है, कई लखनऊ में बन रही है, राजस्थान में बन रही है, एमपी में बन रही है, तो जैसे बड़े बड़े जो फर्म्स है वो आके लोकल रीजन में आके विजिट करते हैं और वहाँ से एक्टर्स पिक करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम एक्टर्स वो रीजन के मुंबई जाते हैं। जैसे जनरली फॉर एग्जांपल नागपुर से ही बहुत सारे एक्टर्स मुंबई में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े फर्म्स इधर विदर्भ रीजन में आ रहे हैं सपोज, तो उन लोग वहाँ यहाँ आके सर्च करते हैं। तो ये डाटाबेस हम कैसा रखते हैं कि कि ये एक्टर इस रीजन का है, इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेंड है नहीं है, मतलब हम डेटाबेस कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आजकल डेटा ही सब कुछ है। तो एक्टिंग में हम उसे या कास्टिंग प्रोसेस में कैसे यूज़ करते हैं? आई नो डेटा सब कुछ है, पर कास्टिंग में एक रूल है जो मतलब मैंने डे 1 से बना के रखा था कि हम कभी भी डेटा देख के काम नहीं करेंगे। तो हमारे पास डेटा है ही नहीं, मतलब है डेटा, मतलब ऐसा सिंक्रोनाइज नहीं है जो आप सोच रहे हो ना कि ऐसा लिखा होगा ए फॉर मतलब सारे ऐसे और एज वाइज या स्टेट वाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है कि हर फिल्म नहीं है, एंड एवरी फिल्म हैज टू स्टार्ट विद अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। इट कैन नॉट स्टार्ट विद, वही बोल रहा हूँ कि वो डेटा प्रोसेस से क्या हो जाएगा ना, सब सेम हो जाएगा। सडनली मुझे पता होगा कि मुझे विदर्भा के लोग ढूंढने हैं, ठीक है, तो वो 5-10 हैं, ठीक है, वही 10 में से मुझे ढूंढ के निकालना है। जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं मुझे नागपुर का एक्टर चाहिए तो वो नागपुर का ही हो, कहीं का भी हो सकता है, बस मुझे बिलीव करवा दे कि वो नागपुर का। वो अलग बात है कि मैं नागपुर के एक्टर्स को डेफिनेटली टेस्ट करूंगा, लेकिन कल को मुझे किसी कानपुर के बंदे ने भी अगर ये विश्वास दिला दिया कि वो नागपुर का है उस कैरेक्टर में, तो उसको भी कास्ट कर सकते हैं। You know, the whole process of casting should be a surprise. We can never be sure of it. It is like again, खेल की तरह है, गेम ऑफ पजल्स की तरह है, कि कोई चीज़ मिली है, उसको इमेजिन करते रहो, सडनली कोई थॉट आएगा और आप बोलोगे यार एक मिनट हटाओ ना नागपुर, इसको हम यहाँ से लाते हैं ना, किसी और प्रदेश से ले आए। You know, that is what will make or break the character. Sometimes दिवाकर एक्चुअली वो कभी कभार उनकी फिल्मों की कास्टिंग करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो कुछ अलग अतरंगी चीजें लाते हैं कभी कभार, और आपको लगता है मतलब अरे ये कैरेक्टर तो फीमेल है, एक काम करते हैं इन दोनों का रोमांस है, काम करते हैं औरत को थोड़ा सा एज ज्यादा दे देते हैं, यू नो, सडनली द सेम रोमांटिक पेयर व्हिच वाज सपोज्ड टू बी 30-30 नाउ इज 70-40। तो कोई 70 साल की महिला और 40 साल का आदमी, अब उन दोनों के बीच का प्यार, वही सेम लव स्टोरी चेंज हो जाती है, डायनामिक्स चेंज हो गए। सो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस, इट ऑलवेज
थ्रू द प्रोसेस ऑल्सो यू लर्न समटाइम्स. कभी कभार ऑडिशंस करने के बाद समझ में आता है कि यार ये वर्क नहीं कर रहा, ये रूट ही वर्क नहीं कर रहा, तो इसको अब अलग तरीके से सोच के देखते हैं. बट ये बात कि कास्टिंग डायरेक्टर्स पहुंच पाएंगे कि नहीं यहाँ तक, या मुंबई वाले एक्टर्स को देखेंगे, आई थिंक रूट दोनों अपने अपने हिसाब से रहेगा. बट कोशिश यही है कि ये जो बोरिया बिस्तर बांध के जो बॉम्बे आने वाला जो एक प्रथा है, जहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोग sometimes what's happening is that you're also wasting a lot of time in Bombay, because I see a lot of kids, a lot of aspiring actors who come to Bombay but then they start having fun. You know what I mean? Like वो फिर बॉम्बे की मस्तियाँ बड़ी है ना, कि समुंदर किनारा भी है, फिर दोस्त भी हैं, फिर थोड़ी मतलब और भी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा अलग चमक धमक है उस शहर का, तो आपको उस पर ही मजा आने लगता है. तो it's dangerous when you're not rich. You know, if you're rich, of course, please go ahead, yeah, be my guest, do whatever you want to do. But it's dangerous. It's very dangerous when you don't have the money, when your father can't afford it, and you will start asking for the money from your parents, and they will wonder कि मेरा बेटा कर क्या रहा है, या मेरी बेटी कर क्या रही है. वो उस चीज से डरना बहुत जरूरी है. That kind of fear is very important, because no matter what, don't forget that India is a poor country. We are not a country where with a lot of with good earnings. तो हम लोगों को वो देख के चलना पड़ता है घर का, वो बहुत जरूरी है. शाहरुख खान ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली थी जो मुझे सही लगती है, कि भूखे पेट यार ज्ञान मत दो. वो बहुत सही बात. always try to understand that यार don't call yourself an artist कि यार मैं गरीबी और गुर्बत में जीऊंगा तो ही मैं आर्टिस्ट हूँ. जरूरी नहीं है. वर्क ऑन इट, कुछ और काम कर लो. अगर मतलब एक्टिंग में काम नहीं मिल रहा है, किसी और डायरेक्शन में काम कर लो, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, आर्ट डायरेक्टर बन जाओ, एडिटिंग सीख लो, कोई क्राफ्ट सीख लो. फिल्म मेकिंग में बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं आजकल. तो मैं बोलूँगा VFX सीख लो. इतने सारे क्या बोलते हैं फिल्म्स बन रही है where you can actually really do a lot. So learn different aspects of filmmaking so that at least you are associated with it, and side by side आपका जो भी है चल रहा है. ये मैं मतलब I really feel that even when you become an actor in today's time, it will not be enough just acting. You will need to develop different skills to sustain a longer career in this industry. सर जी ये साउथ वेस्ट के मैं कोई मूवी बना रहा हूँ. जी सर. तो वैसे चेहरे मुझे लगेंगे. जी सर. है ना, वैसे स्टोरी है. तो हाउ अबाउट मैं यदि समझो कोई वेट्रेस का मैं रोल ले रहा हूँ, कोई कास्ट कर रहा हूँ, वेट्रेस वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी वेट्रेस का काम कर रही है, वो स्टोरी में वेट्रेस है, तो डायरेक्टर को उससे फिर काम कराना इजी होगा कि नहीं एक्टिंग का? आप कह रहे हैं कि किसी रियल वेटर को, रियल वेट्रेस को, या रियल वेटर है, रियल वहाँ के जो है, मैं उनको वैसे ले रहा हूँ. तो डायरेक्टर वैसे फिर, क्योंकि उसका तो फीलिंग है, उसकी तो ऑलरेडी फीलिंग है. मतलब वो ऑब्वियसली सर मोमेंटरी फीलिंग अलग बात है, पर एक आर्क है. अब एक कैरेक्टर का आर्क होता है, वो मतलब बिगिनिंग मिडिल एंड, वो बिना ट्रेनिंग के आ नहीं सकती है. अगर आप बहुत मतलब वही है, द थिंग इज दैट इफ देयर इज समबडी हु इज वेरी गुड अ डायरेक्टर, तो मतलब फिल्म मेकिंग एनीवे डायरेक्टर्स मीडियम में हम एक्टर्स का एक्चुअली कुछ काम है नहीं. जिस तरह से फ्रेम लगाएंगे और जिस तरह से कैमरा चलेगा उस तरह से हम दिखेंगे. वो अगर चाहते हैं तो हमें बहुत बड़ा इंसान भी दिखा सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो बिल्कुल इग्नोरेबल ब्लॉकिंग भी दे सकते हैं, जहाँ पे हम इग्नोर हो जाएं, चाहे हम कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लें. तो इट इज़ कम्प्लीटली देयर मीडियम, इट इज़ देयर चॉइस whether they want to cast non-actors in a film. I know my friend Avinash Arun, he's made, and of course, Infantry? Killa. So, when you see those kids, how do you कैसे आप एनालाइज करोगे कि वो एक्टिंग करते हैं नहीं करते हैं? पर वो अविनाश को कराना आता है, उसको पता है वो क्या बोलेगा क्या. सो वो डायरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि वो वेटर, अगर मैं वेटर को वेटर में कास्ट कर दूं और वेटर को सिर्फ कप रख के जाना है, तो प्रॉब्ली यस, इट विल बी एन ईजियर जॉब. बट आई वुड प्रेफर टू कास्ट एन एक्टर इफ यू आस्क मी. मतलब मैं यही चाहूँगा कि मतलब जिन्होंने इतने साल से सीखा है या ट्रेनिंग ली है, मैं कोशिश करूँगा कि उनको छोटे से छोटे रोल में भी उन्हीं को कास्ट करूँ, भले उनको सिर्फ चल के जाना है. तो कभी बार चल के जाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कैमरा में.
So yeah, I think I would prefer actors, but if a director wants that, I'll definitely go for that also. नए लोग थे या एकदम नॉन एक्टर्स? एकदम नए, नॉन एक्टर्स। बहुत बहुत डायरेक्टर्स कभी कभार ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ई वाले बोल के एक फिल्म है, तो नेटफ्लिक्स पे है, देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। मेरे दोस्त ने बनाई है, प्रतीक और शुभम। उस फिल्म में भी बहुत सारे ऐसे ही नॉन एक्टर्स हैं, अब बंदर भी हैं, और बंदरों से भी एक्टिंग कराई है। तो वो कमाल है सर, वो डायरेक्टर्स की बात होती है। नाउ समटाइम्स दे नो व्हाट टू डू, so that's why they can make anybody act, they can make a non-living thing act also, but then the story and the you know the whole idea has to be there in the director पहले कि वो क्या कराना चाहते हैं। सर मैं नागपुर का फिल्म मेकर हूँ जी सर। और यहाँ पे सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सारे जितने एक्टर्स हैं दे वांट टू बी स्टार्स, यानी हमको ना नेगेटिव रोल नहीं करना, वो सबको है, सबका पूरा इंडिया का ही है सर। मुझे छोटे छोटे रोल मत दीजिए, आप मेन लीड दीजिए। आप मुझे अगर सब हीरो बनेंगे, कोई विलन नहीं बनेगा, तो फिर फिल्म बनेगी कैसी? मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से आप उनको बताएं कि छोटा रोल कोई छोटा नहीं होता, और नेगेटिव रोल करने से आप कोई या वो नहीं बन जाए, रियल लाइफ में आप विलन नहीं बन जाओगे। अरे सर ये वो अभी नागपुर में जैसे बॉम्बे जाएंगे सोच बदल जाएगी। ये तो पता है सर, मैं मुंबई का ही हूँ, लेकिन 2 साल से मैं यहाँ फिल्में बना रहा हूँ। मेरे ये अनप्रोफेशनलिज्म और ये मुझे तो भाई आप नेगेटिव रोल मत दीजिए, ये मत दीजिए, तो मैं अभी नॉन एक्टर से फिल्में बना रहा हूँ। अच्छा, नेगेटिव भी मना कर रहे हैं? नेगेटिव, अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा समझ रहे हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव ही काम करेंगे। ये एक मिसकंसेप्शन आप प्लीज क्लियर करिए कि छोटे रोल से शुरू कीजिए और नेगेटिव रोल इज नॉट। नहीं, अच्छा चलो छोटे रोल की बात करते हैं। इस पूरी बात में एक ही चीज इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, वो कि छोटा रोल, वो छोटा रोल क्या होता है, और आप छोटे रोल में आप क्या करोगे, और छोटे रोल से आपका क्या होगा, ये बड़ा एक सवाल हमेशा रहा है, राइट? कि यार मैं तो अगेन सबसे बड़े महानायक की बात करते हैं, बच्चन सर की। उन्होंने छोटा रोल किया था कौन सी फिल्म में? हाँ नहीं, 7 हिंदुस्तानी में नहीं सर, रेशमा और शेरा, ठीक है, रेशमा और शेरा में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे आनंद में भी he was not the hero, he was a character। वो एक डॉक्टर का रोल कर रहे थे, जो कि एक मतलब परीक्षित साहनी जैसे एक्टर्स भी करते थे, है ना? तो उन्होंने वो भी किया। फिर आप शाहरुख खान पे जाएंगे, आपने शाहरुख खान को सिर्फ बात करते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी भी फिल्मों की, बट ही हैज प्लेड कैरेक्टर्स इन टीवी शोज, टेलीविजन शोज। मैं मेन लीड्स की बात नहीं कर रहा हूँ फौजी वगैरह की, उससे पहले भी has done small parts। The thing is that ये तो चलो खैर बहुत बड़े स्टार्स की बात होती। अब आते हैं इरफान खान पे, अब आते हैं नवाज भाई पे, अब आते हैं दीपक डोबरियाल पे। कितने लोगों ने दीपक डोबरियाल को मकबूल में देखा है? यू नो राइट, अगर आप देखेंगे वापस तो आपको समझ में आएगा उनका एक हेंचमैन का रोल है। वो एक हेंचमैन है, मतलब वो नेगेटिव तो छोड़ो, नेगेटिव के भी मतलब 3 नेगेटिव छोड़ के जो इग्नोर्ड नेगेटिव है, वो जो बस खड़ा हुआ है। तो आई मीन यू नो, सो देयर हैज टू बी वेज। एंड मेरे सीनियर ने, गौतम किशन चंदानी ने मुझे एक चीज बोली थी, अगर तुम एक्टर हो और अगर तुम 5 सेकंड के लिए भी खड़े हो स्क्रीन पे और तुम एक्टर हो, सही में हो, तो वो दिख जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी। डायरेक्टर्स जो है ना बड़े शार्प होते हैं, फिल्म मेकर्स बड़े शार्प होते हैं, वो फ्रेम में ढूंढ के निकालते हैं कि यार ये कौन बंदा है। सो फॉरगेट अबाउट दैट, डर तो भूल ही जाओ। और मैं तो खैर जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का। मैंने बहुत छोटे रोल्स किए हैं और कमाल की बात है कि मुझे छोटे रोल्स में भी बहुत प्यार मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी और यू नो सेटिस्फाइड विद दोस स्मॉल रोल्स। और मैं पहले बहुत करता था छोटे रोल्स। पता है क्यों करता था? क्योंकि मुझे पता था, मैं स्मार्ट था, मुझे पता था कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, फिल्म हिट जाएगी फ्लॉप जाएगी, उससे मुझे क्या। मेरे को तो एक दिन का काम करने का मौका मिल रहा है कैमरा के सामने, ये मेरी ट्रेनिंग हो रही है जो मैं FTI जाके नहीं ले पाया, जो मैं किसी फिल्म स्कूल में जाके नहीं कर पाया। वो मैं रंग दे बसंती का या नो वन निकल जेसिका में छोटा रोल किया था, गोवा गॉन में किया था। और वो उस टाइम में ये सोच के नहीं करता था कि डायरेक्टर मुझे देखेगा और मुझे मौका देगा, नहीं, वो मैं सिर्फ अपने लिए करता था ताकि मुझे समझ में आए कि अच्छा
कैमरा के सामने मुझे इस तरह से डायलॉग्स बोलने हैं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। तो नाउ द थिंग इज दैट दोस छोटा रोल्स एक्चुअली आर योर ट्रेनिंग ग्राउंड, डोंट वरी अबाउट देम। कोई नहीं याद रखेगा। जब आप बन जाओगे ना स्टार, तो उन्हीं छोटे रोल्स को लोग बार बार चला चला के दिखाएंगे, बोलेंगे देखो देखो क्या जर्नी रही है इनकी, ठीक है। So don't get worried about smaller parts, यार. They're actually blessing in disguise, and they're also training in disguise, which also pays your bills. हेलो, वो अगर हमको लाइक कास्टिंग डायरेक्टर या आर्टिस्ट डायरेक्टर को उनको अप्रोच करना है, तो हमको क्या क्या स्किल लगेंगे, उनको अप्रोच कैसे करेंगे? यार बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, आई थिंक वही काफी है हमारे यहाँ पे। जैसे आप कास्टिंग करते हो, तो मेरे को ऐसा क्या सीखना पड़ेगा कि मैं आपके साथ काम कर सकूं? कास्टिंग के लिए वही बोल रहा हूँ, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कम्युनिकेट करना जानते हैं, अगर आप दूसरे एक्टर्स तक पहुंचना जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि क्या आप अगर मेरे टीम में आते हैं तो क्या आप मुझे 100 200 300 एक्टर से मिलवा पाएंगे? क्या आप, जैसे कि आप कह रहे थे ना कि कॉलेजेस में जा जाके लोगों को जाके बोलना, अवेयर करना कि यार यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, आप आइए देखने के लिए, वैसे ही क्या आप अलग अलग क्षेत्रों में जाके, बॉम्बे के अलावा भी थिएटर में जाके एक्टर्स को, रूरल एरियाज में जाके रूरल थिएटर के एक्टर्स को क्या आप ढूंढ पाएंगे, बुला पाएंगे? यू नो दैट इज द बेसिकली मेन एजेंडा ऑफ कास्टिंग। या तो आपको वो आना चाहिए, या आपको एक्टिंग आनी चाहिए कि यार मुझे एक्टर्स नहीं पता लेकिन मैं उन एक्टर्स को हेल्प करा दूंगा, यू नो क्या कहते हैं, ऑडिशन देने के लिए। लेकिन अगर आप खुद यंग एक्टर हो तो ऑब्वियसली आप बाकी एक्टर्स को जानेंगे ही, और जानना चाहिए भी, वरना यू नो अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज यू नीड टू नो एज मेनी बिगर, वी आर अ बिग कम्युनिटी एंड वी नीड टू स्टे कनेक्टेड, बिकॉज वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो communication skill is I think the top key for casting. Yeah. My one छोटा एक सवाल इसमें, जैसे सर ने बोला about the acting, उनको जो problems हो रहा है यहाँ पे, तो casting ये चीज़ ही एक industrial term है क्या in a way कि आज नागपुर जैसे शहरों में छोटी independent low budget films बनती है, पर यहाँ पे actors trained नहीं है to function according to a certain system. So it's always like हम नए तरीके डिवाइस करते हैं फिल्म करने के, कि एक बंदा मिल रहा है, वो यहाँ पे फिट होता है, doesn't matter actor non actor, he is cooperative, we can go ahead with the film. So in that context, is casting industrial, limited to the industry? Unfortunately yes, because it's also the kind of so you cannot, the thing is that जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, या तो आपको नए कास्टिंग डायरेक्टर्स लाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे फिल्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक आदमी यही कर रहा है कि उसका काम ही यही है कि वो एक्टर्स ढूंढ के लाए। इसलिए पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स ये काम किया करते थे, हमसे पहले एडीज ये काम किया करते थे। पर कास्टिंग स्पेशलाइजेशन वाला एक डिपार्टमेंट इसलिए बना क्योंकि पैसों की ज़रूरत है कास्टिंग डायरेक्टर्स को, जिससे कि उनका घर चले। क्योंकि अगर वो मोटिवेशन भी नहीं रहेगी तो फिर यार काम भी जाते रहे, और मतलब फिर कर क्या रहे वो। सो नो द थिंग इज दैट नॉट एवरीबडी इज कमिंग टू द सिटी टू बिकम अ कास्टिंग डायरेक्टर। कोई सपना लेके तो आता नहीं है कि मैं बॉम्बे जाऊंगा कास्टिंग डायरेक्टर बनूंगा, कोई नहीं बोलता है ये। आजकल मैंने देखा, लेकिन थोड़ा थोड़ा होने लगा है, बिकॉज probably the revenue is increasing because of ads and OTT and everything. But still it's not really a like you know sought after career तो नहीं है, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ वही चीज़ करें। तो मुझे लगता है इंडी फिल्मों में, या जब हम इस तरह की फिल्में बना रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू ऑल्सो हैव पीपल who are multi skilled, या you know मतलब आप अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तो शायद आपको थोड़ा आर्ट का काम भी आना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा एडिटिंग का काम भी आना चाहिए, या अगर आप एडिटर हैं तो थोड़ा आपको हो सकता है कास्टिंग का काम आना चाहिए। तो जब आप सिस्टम बनाते हो छोटे फिल्मों का, उसमें आप उस तरह की डिजाइनिंग नहीं कर सकते जो हम कमर्शियल फिल्मों में करते हैं, क्योंकि वो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि वो फिर एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ द कमर्शियल फिल्म लगेगी। तो अगर आप नई फिल्म नए सिरे से नए जगह पे बना रहे हो, तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भूलने पड़ेंगे जो बॉम्बे यूज करता है,
या कोई भी और शहर यूज करता है, आपको अपने शहर के हिसाब से रूल्स बनाने पड़ेंगे. और and because you know that's how it will work. If you think of having the same kind of structure, it will always fail because you will not have the money to support the structure. So now how do you create a new structure? आपके टाइमलाइन शायद अलग होंगे, आपके शूटिंग टाइम शायद अलग होगा, आपके लोकेशंस शायद अतरंगी होंगे, आपको गोरिल्ला शूटिंग शायद ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना. तो आपका टाइम कितना है, और क्या आप एक ही साथ सारी फिल्म करना चाहेंगे या तोड़ तोड़ के करना चाहेंगे. बहुत सारे तरीके हैं. I have met filmmakers in Meghalaya who are making action films in 20 lakhs and not bad. You know, when you see those films and you like, अरे यार मतलब कमाल है, मतलब 20 लाख में आपने इस तरह की फिल्म बना दी, ये भी एक अचीवमेंट है. So you can make films from anywhere. अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ई बालेओ की, राइट. वो कुछ 35 लाख में बनी, 35 lakhs, एंड आई थिंक पोस्ट में लाकर कुछ 50 लाख में बनी थी वो फिल्म. तो उतनी छोटे पैसों में वो फिल्म बनी, और फिर वो नेटफ्लिक्स पे आई, और उसमें बॉम्बे का 1 रुपया नहीं लगा. वो सब दिल्ली से ही होके वो किसी तरह से उन्होंने वो फिल्म बना के दे हैड प्रेजेंटेड एंड नेटफ्लिक्स तक आ गई. तो नाउ दैट्स एन अचीवमेंट. इसलिए मतलब मेरा सवाल इसी से आ रहा था कि हम नागपुर में हम फिल्म बनाने का सोचते हैं, तो हम उस तरीके से सोचते हैं जैसे बॉम्बे में फिल्म्स बन रही होगी. पर जैसे बहुत सा ईरानियन सिनेमा भी बना है, तो उन्होंने जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसे कास्ट करके बनाया. तो एक तो 2 तरीके, यू मेक फिल्म विथ वॉट एवर इज अवेलेबल, or you adapt to a system or go to Bombay. So anyways, of course, I think that's the only way. I mean, you have to adapt your environment to make films. ऐसे आप ईरानियन फिल्म्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा, आई एम श्योर आपने रिसर्च भी किया होगा कि जो उनके ट्रैक एंड ट्रॉली शॉट्स हैं, वो एक्चुअली ट्रैक एंड ट्रॉली शॉट्स नहीं थे. वो चेयर्स पे करते थे, ठेलों में करते थे. तो वो जुगाड़ करते थे. अब उसको किस तरह से कैमरा को ग्रिप करना है ताकि वो कैमरा ना हिले, वो आप करो ना, सीखो ना. जरूरी नहीं है कि आपको वही सारे इक्विपमेंट्स यूज करने हैं जो कि फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट्स हैं. कैमरा के अलावा, कैमरा तो यूज करना ही पड़ेगा, पर उसके अलावा ऑब्वियसली कैमरा के भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वर्जन्स हैं. आजकल लोग आईफोन पे फिल्म्स बनाते हैं. वो अलग बात है कि आईफोन पे ग्रेन होता है, बट बनाते हैं. पीपल आर मेकिंग. सो यू नो, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग, बट यू नीड टू हैव द विल and the belief system. Hi Abhishek. Hi. So clearly casting in India has gone through a revolution. जैसे आपने कहा कि बहुत सारे casting directors आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें जो लगता है कि जो casting directors हैं उनके लिए सबसे बड़ा sense of achievement ये है कि हमने नए actors को cast किया. मेरा सवाल ये है कि कोई director आता है कोई कहानी लेके, एक vision लेके आता है, आपके पास एक talented actor है, तो वो प्रोसेस क्या डिप्लॉय करते हो कि ये टैलेंटेड एक्टर नया बंदा है, ये इस डायरेक्टर के विजन को, उस कैरेक्टर को ट्रांसलेट कर पाएगा? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मनी व्हिच इज राइडिंग ऑन अ फिल्म. सो यू एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, सम न्यू एक्टर इन अ लीड रोल, व्हाट इज द प्रोसेस यू डिप्लॉय टू थिंक कि नहीं यार ये बंदा ये कर पाएगा? नो, माय बिलीफ इन माय क्या कहते हैं, assurance in that actor, I think that's enough for me. I'm not thinking about money because I'm thinking about the film. मैं तो मतलब वो सोच ही नहीं रहा हूँ कि प्रोड्यूसर के पैसे मतलब बढ़ेंगे डूबेंगे, मैं वो सोच ही नहीं रहा. और मैं क्यों सोचूं, मेरा काम ही नहीं है वो तो प्रोड्यूसर का कॉल है. मेरा काम क्या है कि मैं उनको एक एप्ट एक्टर निकाल के दूँ, और मैं इनफैक्ट उनका पैसा बचा रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं नया एक्टर कास्ट करके दे रहा हूँ तो जो पैसे वो एक बड़े एक्टर पे खर्च करते, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे, सब लोग वो बड़े एक्टर के पास ही जाएंगे अगर वैसा उनके पास वो मौका होगा. बट आई एम जस्ट सेइंग इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, I'm saving their money. And I'm saving them a lot of money, actually. तो जितना पैसा उनकी फीस होगी किसी एक स्टार पे, मैं शायद उतने पैसों में एक फिल्म बन जाए एक नए एक्टर के साथ. So you know that so I don't think for me it has always been, अगर फिल्म और डायरेक्टर मतलब और एक्टर ये तीनों चीजें अलाइन हो रही हैं, so बस वही एक ही तरीका है सर, ऑडिशन. और फिर वो जो नए एक्टर को है वो उसको एक ऑडिशन देना होगा. वो ऑडिशन अगर सही है तो फिर आगे बढ़ जाएगा. जैसे कि बाबिल को जब कला में कास्ट किया था तो इसीलिए कास्ट किया था क्योंकि उसने ऑडिशन अच्छा दिया था. इरफान साहब के बेटे थे वो, मतलब बेटे हैं वो, बट
the bigger the reason of getting him cast was that his audition was phenomenal. So and he was a new actor. He was not really somebody who is known. Now he is. So that is how Siddhant Chaturvedi in Inside Edge. Siddhant Chaturvedi, you know, right? So now that guy was to be a guy who was to come to my office day in and day out, और ऐसे बैठे रहता था, बैठ के कुछ तो कविता सुनाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो. I used to think that he is talented. अब वो किस में फिट होगा मुझे नहीं पता था, पर वो इनसाइड एज में जब वो एक कैरेक्टर था, इकलौता क्रिकेटर जो दलित है, उसको थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है टीम में, एंड फॉर सम रीजन वी थॉट दैट ही माइट डू अ गुड जॉब, and he got cast in that. Then the same boy, when I had suggested Siddhant in some other film in a big company, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं यार ये कौन है, हम तो नहीं जानते, इसको नहीं करेंगे. फिर सडनली गली बॉय आई एंड लगा अरे यार तूने पहले क्यों नहीं बताया, लगा अरे बहुत बताया था पर तब आप उसको जानते नहीं थे. So that's what we are always providing actors यार. हम तो हमेशा, हमारा काम ही है. आज मुझे पता है कि अगर अगले 5 साल में अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से कौन ऐसे होंगे जो कि अगले 10 साल का करियर बनाएंगे. But that's because I have probably lived with these actors for longer period than the directors and the producers. They are obviously like trying to see the face value. उनको face value दिख रहा है या party value दिख रहा है, दोनों में से कोई value दिख रहा है. तो या तो पार्टीज में ज्यादा दिख रहे हैं तो उनको लग रहा है हाँ ये बंदा एक्टर है, या उनको लग रहा है कि यार ये लड़का मतलब दिखता सही है या इसमें कुछ बात है, इसको ले लेते हैं. पर वो उनके लिए ही बात होती है ना, वो सब्जेक्टिव बात होती है, सॉरी ऑब्जेक्टिव बात होती है. तो मतलब द थिंग इज दैट वो इतना लंबे टाइम तक कोई लंबे रेस का घोड़ा है कि नहीं, वो हमें पता है क्योंकि हम 10 साल से शायद उस एक्टर के साथ नर्चर करते हुए कहीं पहुंचे हैं. तो हमारी जर्नी विद एन एक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ डायरेक्टर्स जर्नी और अ प्रोड्यूसर्स जर्नी विद एन एक्टर. So that's what I mean. I always tell my producers or directors that I know my actors better than you guys. मुझे पता है. वो आपके ऊपर है कि आपको लेना है नहीं लेना है, या आपको चैनल बोल रहा है किसी और को लेने के लिए, आप नहीं लड़ पा रहे हो, मतलब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है इतनी कि क्या बोलते हैं आपका खुद का चॉइस का कास्ट किया जाए, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है. मेरा प्रेफरेंस ही है. सो इनफैक्ट कास्टिंग में भी जब हम टेक्स भेजते हैं चैनल्स को या डायरेक्टर्स को, तो हमेशा प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 भेजते हैं. तो इट्स ऑलवेज देयर इज अ प्रेफरेंस कि ये हमारा प्रेफरेंस है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, बाकी आप देख लो. And then we see sometimes directors don't want to listen to us. Fine. Sometimes they listen to us. Then you get shows like Mirzapur, Patal Lok, Kora. Yeah. Hi, Abhishek. Yeah. My name is Arkdev Bhattacharya. Hi. So my question is more regarding the acting. Yes. So I'll start with theatre. So while on stage, a stage is a finite space that translates itself into maybe a broom cupboard or a battlefield or even Venice. And the actor, when they come on stage, they adjust themselves according to the space, whatever the space is in the scene, in the particular scene. And as an audience, we instantly are able to decipher the dynamics of the actor and the space that is depicted on stage. But in film, many other agencies come into picture, like montage and camera and editing, music. Music is on stage as well. But as an actor, do you, while shooting a scene, do you still try to orient yourself with the space so that some meaning is given out to the audience? अगर सिर्फ स्पेस की बात कर रहे हो, ओनली स्पेस की बात कर रहे हो, तो मैं बहुत सिंपल से बताता हूँ. स्पेस सबसे पहले सिखाते हैं थिएटर में, ठीक है, क्योंकि स्पेस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्पेस को फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. दूसरी चीज, उस स्पेस को अपना बनाना इंपॉर्टेंट होता है, राइट, सो दैट योर बॉडी इज यूज्ड टू द स्पेस, राइट. Now the thing is, I feel in camera, this is my thing. I'm not saying ये कोई टेक्निक है कहीं से सीखा हूँ मैं. I like the surprise of the space in films. The first thing जो मेरे दिमाग में आई थी जब कैमरा एक्टिंग को मैं थोड़ा करीब से देखने लगा, मैंने बोला ये तो बड़ा आसान है.
क्योंकि मुझे चाय की टपरी इमेजिन नहीं करनी पड़ रही है, मैं चाय की टपरी पे हूँ, तो मेरे पास तो वो सारी चीजें हैं। अब तो मेरा बल्कि इट्स लाइक अ चीट कोड, जो कि मतलब थिएटर में सेट्स बनाने के पैसे नहीं थे, होते थे, राइट? मतलब अपनी बात करो, तुम लोगों के पास होते होंगे यार, बट मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास पैसे होते तो क्यूब्स रख दिए, अब क्यूब्स का पहाड़ बनाया, और यहाँ कैमरा में सही में ले गए पहाड़ों में। तो I get very excited because I'm like, okay, every location, every space is going to give me something. So, and the best part is, probably in theater, you can rehearse it, right? You're rehearsing the scenes, you know कि अच्छा कब को यहाँ से ये यहाँ पर रखना है, ये मेरा एक्शन है, मूवमेंट है। But suddenly when you go to the location, और वो एक रियल लोकेशन है, आपने जो सोचा हुआ था हो ही नहीं सकता, वो मूवमेंट हो ही नहीं सकती। Now you have to completely change your movement. So I stopped rehearsing my scenes in my head. I stopped, जो हम ब्लॉकिंग करते हैं थिएटर में, कि ब्लॉकिंग हमारा फिक्स है एक स्पेस के अंदर, वो ब्लॉकिंग में कभी फिक्स नहीं करता कैमरा में, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाके हो सकता है मुझे कुछ नया मिल जाए। इसीलिए शायद स्पॉन्टेनियस एक्टिंग जो है वो ज्यादा वर्क करती है, you know, because you also need to be on your toes. You need to know कि अच्छा, and you need to know how to change yourself. ये नहीं कह सकते आप वहां जाके कि नहीं मैं तो सोचा था ऐसे ही रखूंगा मैं, कब अब नहीं रख सकते हो यार, बीच में टहनी है पेड़ की। Awareness and surprise, it works because it's always going to throw you off, put you off, and you're like, then you are basically thinking on your toes at that moment. तो उस टाइम जो निकलेगा उसी को मैजिक बोलते हैं। So that is what I think the camera acting is beautiful, because suddenly, that's what I'm saying, you don't know what's going to happen, no matter how much you plan it. Eventually जब वो होगा, और मजा उसी का है, जब वो होगा तो आपको भी नहीं पता कि अरे ये ऐसे निकलेगा, अच्छा ये ऐसे हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं पत्थरों से लड़खड़ा के गिर जाऊंगा, क्योंकि मैंने दिमाग में नहीं सोचा था, मैं सोचा था कि चलता हुआ जाऊंगा, लेकिन क्योंकि पत्थर थे वहां पे और गोल पत्थर थे, इसमें मेरा पैर थोड़ा सा स्लिप कर गया तो मैं गिर गया, और मेरे दूसरे को एक्टर ने संभाल लिया और कैमरा ने वो कैप्चर कर लिया, सडनली वो सीन बन गया। सो दैट्स व्हाट द स्पेस इज एक्चुअली, मतलब वो बड़ा वास्ट है यार सिनेमा में, और मुझे तो वही ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट CGI विजय में यही प्रॉब्लम है कि नाउ द थिंग इज यू हैव टू गो बैक टू इमेजिनिंग इट, बट यू एज एन एक्टर आई फील दैट डोंट ट्राई टू कैटेगराइज योरसेल्फ एज अ थिएटर एक्टर और अ फिल्म एक्टर. Don't try to get to that space. Just be an actor. If you're on stage, mold yourself according to your surroundings, according to your environment, according to your text. And on stage, you have a lot of control. You have a lot of control on you. Because after a point, the director is not giving you direction. He's already given. अब आपके ऊपर है. वो आपका medium है. In camera, again, the thing is that there can be many things which the director can do, and the director will make you do, and it will be easier, probably easier than theater, is what I would say. We'll take one last question. Ma'am, you wanted to say something? Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. जी मैम. संजीव कुमार ने एक फिल्म में 9 रोल किए थे और एक कमल हसन ने एक फिल्म में 10 रोल किए थे. वो ज़्यादातर मुझे मेकअप गिमिक्स ही लगे. और अभी आज के दिन ऐसा कोई 10 कैरेक्टर वाला रोल में किसी को आपको कास्ट करना है तो आप किसको कास्ट करेंगे? मैं खुद को करूँगा. Great. Thank you, ma'am. We are running out of time. थोड़ा हमारे पास बस समय की. कितना टाइम है हमारे? आधा घंटे हुआ है ना? कितना हुआ है? नहीं काफी टाइम तो हो गया. कितना टाइम हो रहा है? What's the time right now? हाँ चला एक शेवटचा. Really? अभिषेक जी नमस्ते. नमस्ते. इस प्रकार न्यू कमर कास्टिंग डायरेक्टर के चक्कर लगाते हैं और उनको ऑडिशन देना पड़ता है. तो उसी प्रकार क्या फिल्म स्टार जो स्टार है आलिया करीना वो भी ऑडिशन देते हैं? तो क्या है कि ऐसा कभी कभार देते हैं, कभी कभार वो लोग ऑडिशन देते हैं और वो मतलब जैसे कहते हैं कि कभी कभार वो नाम के ऑडिशंस होते हैं, पर कभी कभार एक्चुअली है. मैं जानता हूँ नहीं जैसे आमिर खान के यहाँ पे जनरली ऑडिशंस होते हैं और आमिर खान साहब खुद भी ऑडिशन देते हैं.
लापता लेडीज की बात हो रही थी, वहां पे वो रिजेक्ट हुए थे, पता है आपको? किरण राव ने उनको रिजेक्ट किया उस फिल्म में। जी जी, और ये सच बात है। तो और ये कभी कभार होता है, पर अगर आपको लगता है कि स्टार्स को नहीं करना पड़ता है स्ट्रगल, तो ऐसा गलत है। मैंने देखा है वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनका स्ट्रगल की जो एरिया होता है, शायद वो ऑडिशन रूम नहीं, कोई पार्टी हो या कोई इवेंट हो, लेकिन उतनी मेहनत उनको भी करनी पड़ती है। उनको भी डायरेक्टर्स को जाके बोलना पड़ता है कि भाई प्लीज हमारा ख्याल रखो, ध्यान दो, ये करो। तो बिल्कुल बना के तो रखनी पड़ती है मैम, वो तो अभी दुनिया का दस्तूर है, उसमें एक्टिंग का कोई लेना देना है नहीं एक्चुअली। ओके दादा, थैंक यू मैम। यस यस, हाँ पूछो यार। जो थिएटर आर्टिस्ट है यहाँ पे और नए बडिंग एक्टर्स है नागपुर में जितने भी है, एक सबसे बड़ा एक सवाल हो जाता है कि पहले तो हमको ट्रेन करना है एज अ थिएटर करके या फिर शॉर्ट फिल्म करके जो भी है खुद को। उसके बाद ना बहुत सा देखा है मैंने कि 1-2 साल ना वो पैसे जमाने में रखते हैं कि मुंबई जाना है और मुंबई जाने के बाद फिर वहाँ पे करना है। तो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि एक एक्टर मुंबई में रहे या फिर अपनी प्रैक्टिसेस किसी उसी सिटी में करते रहे, और फिर जो कोरोना के बाद जो एक प्रोसेस हुआ है कि एक सेल्फ टेप चले जाती है या फिर ये होता है, तो बीइंग उस बडिंग एक्टर के लिए मुंबई में रहना या फिर अपने अपने जोन में रह के खुद की स्किल्स को तराशना, या थिएटर ग्रुप में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है 2 साल बाद 4 नाटक के बाद मुंबई जाए या 8 नाटक के बाद जाए, ये समझ में नहीं आता है लोगों को और वो वापस आ जाता है। तो आपका उस पर क्या टेक रहेगा कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब आई थिंक ना चाहते हुए भी मुझे यही कहना पड़ेगा कि जैसे कि अभी मैम ने भी बोला ना कि कैसे होता है, मैंने बोला कि भैया आप मिलते हो, एक दूसरे को मिलते हो, मिलके काम मिलता है। मुझे मेरा पहला काम क्यों मिला? क्योंकि मैं 7 साल से बॉम्बे में था, कास्टिंग कर रहा था और अमर कौशिक जी को जानता था। तब वो कुछ नहीं थे, ठीक है, वो एक एसोसिएट डायरेक्टर थे, मैं भी कुछ नहीं था, मैं भी एसोसिएट डायरेक्टर था। कुछ एक रिश्ता बना, वो डायरेक्टर बन गया, मैं एक्टर बन गया। वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैं बॉम्बे में था। अगर मैं बॉम्बे में नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो शायद मुझे किसी ऑडिशन से रोल मिलता, पर वो ये रोल होता या कोई और रोल होता मुझे नहीं पता। सो दैट्स अ थिंग दैट अ सिटी, आई थिंक शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मतलब ये, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सारे शहरों में रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं कलकत्ता में रहा हूँ, मैं चेन्नई में रहा हूँ, मैं अभी बॉम्बे में रहता हूँ। मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो एक चीज मुझे पता है कि शहर की ना एक तासीर होती है, ठीक है, और वो ना आपको पकड़नी पड़ेगी। वो आप, अगर मैं नागपुर में हूँ तो मुझे समझना पड़ेगा कि नागपुर क्या है। जैसे आपने मुझे बोला कि धूप बड़ी है यहाँ पे और लोग तीखा खाना खाते हैं, ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, ठीक है। तो मुझे अगली बार कभी भी नागपुर का कोई मिलेगा तो मुझे एक फेमिलियरिटी है नागपुर शहर से, जो मेरे को नहीं होती अगर मैं बॉम्बे बैठा होता या खड़गपुर बैठा होता। मुझे यही पता रहता कि नागपुर में संतरे मिलते हैं, ठीक है, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं पता होता। जब तक कि मैं नागपुर नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आया कि यहाँ से विदर्भ या ये पूरा एक अलग एरिया है, और वहां पर द होल भोसले राजा और ये सारी जो कहानियां आपने मुझे बोली, ये मेरे जहन में हमेशा रहेगी, है ना। मुझे ये पता रहेगा कि अच्छा, नागपुर में थिएटर कल्चर बड़ा स्ट्रांग है और वहां पे इस तरह का एक फिल्म इंस्टीट्यूट, एक फिल्म फेस्टिवल होता है जो कि जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं और फिल्में देखते हैं। ये मुझे कभी पता नहीं चलता अगर मैं यहाँ नहीं आता। तो वैसे ही जब तक आप बॉम्बे नहीं जाओगे, जिस शहर में पूरी फिल्म इंडस्ट्री है भाई, वहीं नहीं जाओगे, वहीं पर अगर समझोगे नहीं, करोगे नहीं, कैसे करोगे, क्या करोगे, दैट इज ऑफ कोर्स ऑन यू। अभी सेव मनी करके 6 महीने के लिए जाना है, फिर वहां पे काम करते 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 पैसा कमाना है। बट ये प्लीज मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा, डोंट बिकम अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स और एनीबडी, वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर मतलब खुद पे काम करो एंड अर्न दैट मनी, नो मैटर हाउ यू अर्निंग दैट मनी, सही काम करके अर्न करना। बट या लाइक just try to stick to your work ethics and be honest towards your work, and this city will always give you. One thing about Bombay, no matter how much difficult it seems from outside and everything, if you are really, really dedicated and committed and passionate and hardworking, you will find a way. It is impossible. It is impossible कि आपको काम नहीं मिलेगा अगर आप dedicated हो, committed हो,
पैशनेट हो, टैलेंटेड हो, और इन सारी चीज़ों के बाद आपको काम मिलेगा। और काम मिलने के बाद कंसिस्टेंटली काम कब मिलेगा? जब आप डिसिप्लिन्ड हो। तो बेसिकली आपके सारे राइट वर्च्यूज के ना फल बड़े अच्छे मिलते हैं बॉम्बे में, और आपके गलत वर्च्यूज के भी फल बहुत बढ़िया तरीके से बॉम्बे सिखाता है। तो ये याद रखना कि इट्स नॉट एन इजी सिटी फॉर पीपल हु वांट टू स्लैक और वांट टू प्रोक्रेस्टिनेट। Quick, yes, sir. Sir, please. मैं एक श्रोता के बाकी बता चाहता हूँ आपको। जी ये जो पूरी चर्चा हुई जी सर, हाउ टू मेक पिक्चर, जी कास्टिंग, जी स्मगलर, जी, ये सब विषय के ऊपर एक आधी पिक्चर बनना चाहिए। मेरे को याद है रंगीला पिक्चर में ये काफी चीजें आई थी। जी जी, रंगीला में हीरोइन कैसी बनती है, पिक्चर कैसे बनता है, और वो डायरेक्टर की क्या शान रही थी, जी ये थोड़ा सा मैंने उसमें देखा हुआ। जी, कुछ पिक्चर में ऐसे थोड़े देखा वो है ना सर, ओम शांति ओम है ना। हाँ, लक बाय चांस बनती बीच में बनती है सर। बनाएंगे, हम भी बनाते हैं, हम 12th फेल टाइप का बनाएंगे, ऐसा ना स्ट्रगलिंग वाला बनाएंगे सारा। ठीक है, Okay. Let's end on this note. अभिषेक, एक लास्ट आप अगर बोल सकते हो, बिकॉज वी आर इन अ फिल्म फेस्टिवल एंड बिकॉज आवर रूट इज सिनेमा, व्हाई डू यू थिंक सिनेमा इज इम्पोर्टेंट? ये यार तुमने कोर्स का सवाल पूछ लिया। व्हाई सिनेमा इज इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं बोलता। आई एम नॉट सेइंग सिनेमा इज इम्पोर्टेंट, आई नेवर सेड दैट। आई डोंट नो इफ सिनेमा इज इम्पोर्टेंट फॉर मी और सिनेमा इज जस्ट an entertaining medium for me. But one thing is true that मुझे अगर मल्टीवर्स में विश्वास है, अगर आजकल मल्टीवर्स की बड़ी बातें होती हैं कि हम एक जगह पे हैं लेकिन बहुत जगह अभी हैं और बहुत सारे टाइम जोन्स में बात करते हैं, तो टाइम एंड स्पेस को अगर कोई मीडियम भेद पाया है तो वो सिनेमा है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आप 1950s या 60s में एक स्पेस की फिल्म देख पाते हैं, फ्यूचर की फिल्म देख पाते हैं, और अभी बैठ के हम एक मिडिवल पीरियड की फिल्में देख पाते हैं। तो ये बेसिकली एक सार है पूरी दुनिया का, और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से भी मिल पाते हैं उन कैरेक्टर्स को देख के। सो इट्स लाइक अ वर्ल्ड इन इट्स ओन, एंड दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स need to know more about the world so that we can actually have more empathy, which is the need of the hour for the human civilization in today's time. Thank you, Abhishek.